Ladies and gentlemen, good morning and a warm welcome to Empower Your Next Gen, an exclusive event hosted by Tailwind for distinguished business owners like yourselves. We are honored to have Professor Parimal Merchant with us today, whose insights will enlighten us on effectively managing multi-generational dimensions within family businesses and harnessing their immense potential to create a lasting legacy. Before we proceed, we would like to share with you an exciting introduction to Tailwind. We have created a brief video that showcases our values, expertise, and commitment to serving families. We provide you with a glimpse into our personalized approach and deep research that underpin our services. So without further ado, let's take a moment to watch the Tailwind introduction video. Young Samay found a fragile sapling one summer day. He carefully planted it in their sunny backyard, diligently tracking its growth in his journey. Years rolled by and the sapling morphed into a towering tree, offering a cool haven as the city turned increasingly hot. One day, under its soothing shade, Samay said to his son, "Just like savings grow over time, son, a small act years ago gave us this blessing today." Samay's story highlights Warren Buffett's famous quote, "Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree long time ago." These words emphasize the power of small, consistent actions taken over time. We hope you found the video informative and relevant. It reflects our dedication to understanding your unique needs and crafting tailored solutions that align with your values and aspirations. At Tailwind, we firmly believe that your success is our success, and we are committed to being your trusted partner in this journey to create a lasting legacy. Our personalized approach and deep research have been instrumental in our growth to reach a milestone of 750 crores of asset under management with over 200 families. With over 200 families in our journey as a trusted wealth management company. This, combined with our recognition through regular contributions in major financial publications, underscores our commitment towards excellence and staying ahead of industry trends. Now, without further ado, we begin with today's session with Professor Parimal Merchant, where we delve deeper into the dynamics of family businesses and explore strategies to unlock their immense potential. Professor Merchant's profound knowledge and experience will provide valuable insights and practical advice that can drive the growth and success of your family businesses. Before that, we would like to thank Professor Merchant for coming here all the way from Dubai for this session. Here is a short video introduction about him. Dr. Parimal Merchant. Dr. Merchant is the Director of Global F&B Program at SP Jain School of Global Management. He is graduate in BCom and has completed his Brand General Ledger course from University of Mumbai, India.
He has done ICWAI program from Institute of Cost and Works Accountants of India. He is a PhD holder from Birla Institute of Technology and Science, Pilani, India. His topic for the PhD was inducting the next generation member in family business in India and SME context. Subjects he taught are general management, managing for result, general management, managing for family dynamics, finance management, managing working capital, and cost and management accounting. He has teaching experience of 27 years in MBA programs with a focus on management for family managed business. He has been involved in profit improvement consultancy projects for nearly 35 years and has been involved with nearly 100 companies, both SME as well as corporates. He has coordinated projects of development of corporate citizenship DOCC, guiding students to provide consultancy to over 300 NGOs. He has been actively involved in humanist movement for more than 38 years, working in global cooperation for better society and better personal life. As we gather here today, let us embrace this opportunity to learn, share, and forge meaningful connections. The next few hours will be filled with enlightening discussions, networking opportunities, and collaborative learning. We encourage you to actively engage with our esteemed speaker, as well as with the fellow family businesses, to exchange ideas and experiences that can propel your businesses forward. Once again, we extend our heartfelt welcome to each one of you. Let us make the most of this event and embark on a transformative journey together. Thank you. Thank you. Please welcome Professor Merchant. See, Rotary has arranged this program, and I am a very big beneficiary of Rotary. My daughter went for youth exchange to France. And I'm telling you, this is one of the best programs offered by Rotary. I don't know whether people have understood the value of all these things, but youth exchange for 1 year living in somebody else's house, जो culture का मतलब जो person का formation होता है ना, is phenomenal. I know so many Rotary members who are not sending their children abroad because एक गलत ख्याल है. ख्याल ये है कि 1 साल वेस्ट होता है. बट 1 साल वेस्ट कैसे होता है? What is the meaning of education? School and college is not only education. The point is learning there, age of 15. My daughter had to go France. जस्ट जाने की जो डेट थी ना, उसके 1 हफ्ते पहले बास्केटबॉल खेलते खेलते नी इंजरी हो गई, लिगामेंट टेयर. एकदम खुश होते होते घर पे आई. माई कोच हैज टोल्ड जब तक लिगामेंट टेयर नहीं हुआ ना तब तक आप स्पोर्ट्समैन ही नहीं है. तो मतलब नाउ यू आर सर्टिफाइड स्पोर्ट्स पर्सन की लिगामेंट टेयर हो गया मतलब आपका काम हो गया. नाउ द होल थिंग इज 16th August इज द डेट ऑफ डिपार्चर. डॉक्टर ने बोला नी सर्जरी करनी पड़ेगी. वी आर होपिंग कि भाई डॉक्टर जोशी करके एक है उसको बताते हैं, अगर सर्जरी पोस्टपोन हो जाए ना तो शी कैन गो. तो टिकट कैंसिल नहीं करवाए. On that day, doctor says surgery करनी पड़ेगी. 3 month rest. So now on 20th October she can go. She is restless. 20th October month, एक दिन भी ज़्यादा नहीं रोकना है. And she had to go. Injured journey, injured leg. अपने बॉम्बे में तो आपको पता है एयरपोर्ट में हमको तो अंदर जाने नहीं देंगे. As she is 15, she is carrying the luggage. अंदर गए उन्होंने बोला तुम्हारा 1 किलो लगेज ज़्यादा है, अलाउ नहीं करेंगे. अभी वो तो हमारे पास में आ नहीं सकती है. एंड शी हैड टू मैनेज. एंड देन शी हैड टू गो टू फ्रांस बाय टर्किश एयरलाइंस. तो इस्तांबुल में उसको गेट चेंज करना है. अभी क्या होगा? कर सकते हैं नहीं कर सकते? बेचारी लड़की. और फिर नीस एयरपोर्ट पे जब लैंड करती है तभी अगर कोई उसको लेने नहीं आया तो. एंड दिस वाज मेनी इयर्स अगो. तो शी कैरीड अ फोन कि इंग्लिश फ्रेंच ट्रांसलेशन सो दैट अगर उधर किसी से बात करनी है. नीस इज एन एरिया वेयर नोबडी नोज इंग्लिश.
Now the guarantee was, this is Rotary, so obviously somebody is bound to come there. Failure proof. So the parents को कोई फिक्र ही नहीं है कि जब एक बार वहां गए ना तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है. This is the strength of Rotary. And in my opinion, इसका जो educational value है ना, most of the people have not yet fully realized. Education is also for the parents. When my daughter is going alone, of course we have to also decide ना. और फिर वो वहाँ पे क्या होती है और क्या करते हैं, फिर अपने घर पे लोग आते हैं. तो when she learned working in France with people, she lived जिनको English बिल्कुल नहीं आता है, and 3 people came to our house from Mexico and Germany and Belgium, and we learn about the Hafiz life there. So it's a phenomenal program. I think grossly undervalued, grossly underutilized. Other than Rotary, nobody can offer this. Even if they offer, I will not trust it. But because of this whole network and all kind of thing, is a very, very strong program. So that is what my indebtedness to Rotary. Now I come to my subject. मेरा सब्जेक्ट में क्या होता है, मैं अभी आजकल दुबई रहता हूँ. तो अभी दुबई रहता हूँ. क्यों दुबई रहता हूँ? दुबई में मैं सीखने जा रहा हूँ. लास्ट 50 years, ऑलमोस्ट 50 years, आई एम वर्किंग. मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ और मेरा तकदीर ऐसा है ना, कई लोगों के पास में 10 साल का एक्सपीरियंस होता है तो 1 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने 10 बार रिपीट किया हुआ है. लेकिन मेरा उल्टा है. मैं एवरी ईयर आई गेट इन्वॉल्व विद डिफरेंट बिजनेसेस. तो कम से कम 40 डिफरेंट इंडस्ट्री में कंसल्टिंग कर चुका हूँ. तो अभी आप बोलो टेक्सटाइल बोलो, सीमेंट बोलो, स्टील बोलो, एस्बेस्टोस, पेपर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिल्म मेकिंग. सो दिस डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपोजर. दुनिया बाहर से कैसे दिखती है, अंदर से कैसी होती है, ऑल द थिंग डन. तो इंडिया हैव फेयरली डीप एक्सपोजर. एंड आई रियलाइज इंडिया इज नॉट नोइंग व्हाट इज इट्स रियल स्ट्रेंथ. इंडिया के जो बिजनेसेस है ना, पिछले 5 साल में तो हालत खराब हो गई है. कोई काम ही नहीं करता है. सब लोग ने एक जो पाप था 2020, 20 साल पहले, अगर कोई भी बिजनेस करता था ना, उस टाइम एक चीज को पाप बोलते थे. एंड दैट वाज, वी हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स. कोई भी गवर्नमेंट हो, अपना क्या है, अपने को तो अपना धंधा करना है. पिछले 5 साल में हालत ऐसी उल्टी हो गई है, बिजनेस वालों ने अपना बिजनेस छोड़ दिया है. पूरी सोसाइटी बिजनेसमैन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है. और हमारे स्टूडेंट को तो हमने सीधा बोला है, देखो भाई अभी तो धंधा करना है ना, इजी है. किसी के भी पास में जाओ, पहले 2 मिनट में पकड़ लो, आदमी प्रो मोदी है एंटी मोदी है. प्रो मोदी है, बोल दो अरे इंडिया को ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिलता ना, जापान को ओवरटेक कर देते. हो गया आपका काम गारंटीड. और अगर एंटी मोदी है तो 15 लाख आया नहीं है. द क्वेश्चन इज, आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? प्राइम मिनिस्टर तो आते हो जाते हैं, अपना धंधा है ना, हम करेंगे तो होगा. इंडिया डज नॉट ग्रो बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर. इंडिया ग्रोज बिकॉज ऑफ फैमिली बिजनेसेस. दिस इज व्हाट इज द रियल स्ट्रेंथ. और 20 साल पहले की किसी को भी पूछो, हमें तो कोई भी गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, हम अपना धंधा देखते हैं. अभी क्योंकि हम उसकी बात करते हैं ना, हम अपना धंधा भूल गए. और फिर तो एक नई बीमारी चली. ये बीमारी का भी एक साइंस है. ये बीमारी कैसे होती है? हर 2-3 साल में हम में से सब लोगों को एक बुखार आता है. क्या बुखार आता है? फिटनेस का, फिटनेस करने का. तो या तो हम जिम ज्वाइन कर देते हैं, या वॉकिंग चालू कर देते हैं, या डाइटिंग चालू कर देते हैं. जब बहुत साल के बाद में सुबह में 6 बजे उठ के मैं पहली बार वॉकिंग पे गया ना, क्या अच्छा लगा. आई वॉज रिग्रेटिंग, इतने साल मैंने क्या किया. शाम को जाके यूनिफॉर्म ले लिया. नो, खाली वॉकिंग क्या करना है, करना है तो ढंग से करो. ऑर्डिनरी शूज क्यों लेने का, ले तो अच्छा लो. बराबर टी शर्ट वेशर्ट पहनो ना, सब कुछ बराबर करो. फिर दूसरे दिन वॉकिंग किया विथ यूनिफॉर्म, और अच्छा लगा. अभी तीसरे दिन क्या होता है कि अपने बॉडी को आदत नहीं है ना इतना जल्दी रोज उठ के ये सब करने की, तो एक दिन तो छुट्टी बनती है. चौथे दिन को क्या होता है, मुझे तो जाना था लेकिन अलार्म नहीं बजा, मैं क्या करूं. और 5वें दिन में तो कंक्लूजन आ जाता है, अपनी लाइफस्टाइल में ना ये जमता नहीं है. फिर 3 साल के बाद में वापस,
तो अभी तो वॉकिंग नहीं कर सकते, अभी डाइटिंग चालू करेंगे। और कौन सा डाइटिंग? स्पेशलिस्ट डाइटिशियंस हैं, इसका तो वजन इतना कम हो गया, इसका तो इतना गया, हमने भी चालू किया। और फिर आप हमसे तो होता नहीं है। तो ये सब लोगों का बीमारी था। तो एक आदमी ने क्या किया कि लोगों को ये सब करना है। बिजनेस की सीक्रेट क्या है? दूसरों का दुख दूर करने में अपना कल्याण है। भाई दूसरों का दुख क्या है? हेल्थ के लिए सबकी गिल्टी फीलिंग है, लेकिन डाइटिंग कर नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर मैं आपका दुख दूर करूं ना तो मेरा कल्याण हो जाए। तो ये आदमी समझ गया, उसने बोला देखो एक्सरसाइज मैं करूंगा, आपको खाली सांस लेने का है, बस। और फिर तो लोग इतने चाहत हो गए, आस्था चैनल 16 करोड़ में खरीद लिया वो आदमी ने, और अभी लोग आस्था चैनल देखना चालू कर दिया। अरे ये बिजनेस वाले के लिए नहीं होता है आस्था चैनल, लेकिन अभी बिजनेस वाले ये सब देखने चालू हो गए। और आ गए सब फिलॉसफी, अरे पैसा किधर लेके जाने का है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, आखिर क्या चाहिए, दाल रोटी चाहिए, ऑल नॉनसेंस स्टार्टेड प्रिवेलिंग। और तो फिर सब अभी फिलॉसफी में लग गए। जब बिजनेस वाले फिलॉसफी करते हैं ना, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ठीक है आप तो करो, अभी फिलोसोफर्स लोग क्या करेंगे? वो बेचारों को अभी बिजनेस में आना पड़ा। कल ही मेरे को बताया 50,000 करोड़ का टर्नओवर किया उन्होंने। खाली आप सांस लो, बाकी धंधा मैं करता हूं। और फिर ये फिलॉसफी जब चलती है ना तो कहां से कहां लेके जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस एक नया डायलॉग चला है। व्हाट नॉनसेंस। रात को है ना हमको तो पीसफुल स्लीप चाहिए। आपको क्या लगता है मेरे सर पे अगर 50-100 करोड़ का कर्जा है तो क्या मेरे को नींद नहीं आती है? सडनली एवरीबडी वांट्स टू बिकम जीरो डेट कंपनी। वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड आइडिया एवर कम, बिकमिंग जीरो डेट। एक साहब मुझे बोलते हैं आई एम 55, मेरा टारगेट है बाय द एज ऑफ 60 ना मुझे जीरो डेट बनना है। मैंने बोला क्यों? तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को है ना ये सब झमेला सर पे डालने का। मैंने बोला आपने क्यों नेक्स्ट जनरेशन को इतना निकम्मा बना के रखा है कि वो डेट हैंडल नहीं कर पाएगा। जो आदमी डेट हैंडल नहीं कर सकता वो धंधा क्या करेगा? द होल बेसिक्स ऑफ शेकन। 20 साल पहले, खाली 20 साल पहले हम तो किधर का भी वड़ा पाव खाते थे, किधर का भी पानी पीते थे, कोई बीमार नहीं होता था। We have traveled by ST buses everywhere and we were happy and perfectly fit. Think about the thing that business करना इधर है और हम लोग इधर की बात कर रहे हैं। This is what has drastically changed. और फिर क्या हो गया? फिर नेक्स्ट जनरेशन की बात आती है and then it becomes very interesting. पूरी दुनिया में इतने कंसल्टेंट निकल गए, जितने फैमिली ने उससे ज्यादा तो कंसल्टेंट हो गए। क्या क्या बात करते रहते, लेकिन छोड़ो ना, मैं मेरी बात करता हूं। मैं दुबई में हूं, अभी दुबई में सीख रहा हूं भाई दुनिया में बिजनेस क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की क्या चीज है, बिटकॉइन क्या है, मेटावर्स क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आई नीड टू नो सो दैट आई कैन प्रोड्यूस माई प्रोग्राम हियर। इसके लिए मैं जाता हूं दुबई में। तो अभी टाइम है मेरे पास में। एक फ्रेंड का वो कुछ प्रोजेक्ट लिया था उसने मास्कोट बनाने का, एंड बहुत डेडलाइन शॉर्ट थी। मुझे बोल रहा है कि कुछ हेल्प कर सकता है। मैं बोला ठीक है मैं आता हूं, जो हेल्प कर सकता हूं करूं। तेरा मास्कोट बनाना मुझे तो आता नहीं है, लेकिन मैं खड़ा हूं, तू बोलेगा तो चाय लाता हूं, तू बोलेगा तो पानी लाता हूं, तेरे को जो चाहिए मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं। उसने मुझे थोड़े टाइम के बाद में बोला एक है ना जरा उधर मार्केट में जाके एक ग्लू लेके आने का है। ये ना इंडिया की एक ब्रांड है, दो हाथी वाली ब्रांड है, ग्लू, फेविकॉल बोलते हैं उसको, फेविकॉल। मैं बोला मालूम है। मैं गया, मैं तो फेविकॉल लेके आया। देख के मेरे को बोलता है ये क्या है? मैं बोला फेविकॉल है। बोलता ये फेविकॉल नहीं है, ये देखो मैं ना ये लेके आया। ये बोलता ये फेविकॉल नहीं है। अरे मैं बोला यार मैं इंडिया में बड़ा हुआ, ये ब्रांड के साथ साथ मैं बड़ा हुआ हूं, फेविकॉल इसी को बोलते। बोलता है ये फेविकॉल नहीं है। मैं सोचा तू मेरे को हेल्प करेगा, उससे बदले अभी मेरा तो और डिले हो गया। अभी उसको चाहिए ये फेविकॉल। वो फ्रस्ट्रेटेड, मैं फ्रस्ट्रेटेड। वो बोलता है ये तेरे में इतना अक्ल नहीं है कि इसको फेविकॉल बोलते हैं। मैं बोलता हूं तुम लोग क्या बात करते हो यार, हम तो इसी को फेविकॉल बोलते हैं। दोनों फ्रस्ट्रेटेड।
वो बोलता है यार अभी है ना जिंदगी में कभी किसी से हेल्प नहीं मांगूंगा, इससे अच्छा मैं करता ना तो अच्छा होता। और मैंने भी बोला तेरे को हेल्प करने गया खाली अपने रिलेशन में टेंशन होता है, उससे अच्छा हेल्प ही नहीं करने का। ये क्यों लफड़ा हुआ? वो फेविकॉल बोला, मैं भी फेविकॉल सुना, मैं फेविकॉल लाया, वो फेविकॉल अलग निकला। ये एक चीज है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। अब मैं आपको दूसरा प्रॉब्लम बताऊं, वो शायद कई लोगों ने सुना होगा क्योंकि मेरा बहुत घिसा पिटा हुआ प्रॉब्लम है, बट कई नए लोग हैं तो मुझे बताना पड़ता है ना। हमारे हॉस्टल के लिए हमारे डीन ने मुझे भेजा कि भाई अभी एक बॉम्बे में हमारे स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो वी टेक अ होल बिल्डिंग, हॉस्टल बनाते हैं उसमें। अंधेरी वेस्ट में था तो मैं एक बिल्डिंग था तो मैं गया देखने के लिए। मैं जब आया ना तो मैंने इनको बताया कि मैंने बिल्डिंग देखा, लेकिन मैं जब गया ना तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उन्होंने मेरे को ग्राउंड फ्लोर से बिल्डिंग दिखाया। अभी बिल्डिंग तो इतने चिपक चिपक के होते हैं ना बॉम्बे के, तो ग्राउंड फ्लोर में तो लाइट नहीं करो ना तब तक तो अंदर कुछ दिखता ही नहीं अपने को, और वेंटिलेशन जैसा तो कुछ चीज ही नहीं होती है। फिर भी हमने विंडो खोला। अभी सेकंड फ्लोर पे किसी ने बाल बनाया था, तो कंघी साफ करके जो बाल रहते ना उसको फ्री फ्लो छोड़ा था। वो ऐसे 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 घूमते 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 जैसा मेरा विंडो खिला ना, वार्म वेलकम टू दिस ग्रैंड बिल्डिंग। मैंने आके डीन को बोल दिया बिल्डिंग यूजलेस है, अपने काम का नहीं है। मेरे डीन बोलते हैं भाई देखो बंबई में अपने पास में इतने ज्यादा चॉइस नहीं होते, जो होता है ना अपने एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे वो सब बराबर है, लेकिन अपने स्टूडेंट का भी कोई स्टैंडर्ड होता है ना। दिस यूजलेस। अभी ये बोल के मैं निकल रहा हूं, बराबर उसी टाइम एक दूसरा प्रोफेसर अंदर जा रहा है, सर द बिल्डिंग इज फेब्युलस। मैं रुक गया, तू कौन सा बिल्डिंग का बात कर रहा है? ही इज टॉकिंग अबाउट द सेम बिल्डिंग। मैंने बोला मैं अभी अभी बोल के निकल रहा हूं, लाइट वेंटिलेशन इज रॉटन। वो मेरी ओर नहीं देखता है, सीधा डीन की ओर देखता है, सर एक्सेसिव लाइट एंड वेंटिलेशन। मैं बोला यू तू मेरे पीछे ही पड़ा है क्या? यू वांट टू मेरा नाम बदनाम करने के लिए पीछे पड़ा है? मैं जो भी बोलता हूं तू उल्टा बोल रहा है। मुझे बोल रहा है तू अपने सर पे क्यों ले रहा है? मैंने जो देखा वो मैं बोला, तो मैंने बोला मैंने नहीं देखा क्या? मैं वहां जाके एक्सपीरियंस करके आया हूं, बिल्डिंग इज लाउजी। वो बोलता है मैं एक्सपीरियंस करके आया हूं, बिल्डिंग इज फेब्युलस। मेरा तो इतना टेंशन हो गया। हुआ क्या था, वो जब गया ना तो लाइट था, तो उसको सीधा लिफ्ट में 15th फ्लोर पे लेके गए। अभी 5 किलोमीटर की रेडियस में एक भी बिल्डिंग नहीं है 10 स्टोरी का अबाव, तो उसको तो पैनारामिक व्यू मिलता है। और अगर विंडो खोला ना तो गैस बूढ़ बन जाएगा, तो खाना बनाना है तो विंडो बंद करना पड़ता है। इतना एक्सेसिव लाइट एंड वेंटिलेशन। सवाल यह है कौन झूठ बोल रहा है? वो झूठ बोल रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूं। या तो बिल्डिंग या तो लाउजी हो सकता है या बहुत अच्छा हो सकता है। मैं बोलता हूं लाउजी, वो बोलता है बहुत अच्छा। झूठ कौन बोल रहा है? और फिर एक तीसरी बात हुई। क्या हुआ, मैं थाना में टॉक दे रहा था, लास्ट मिनट पे उन्होंने कोई और नहीं आया तो मुझे बोल दिया, लेकिन मेरा तो दूसरा प्लान था, मुझे जाना था आगे, तो मैं टॉक दे रहा था। और तभी मेरे को याद आया कि अभी तो मैं यहां से जाके थाना से ट्रेन पकड़ने वाला हूं, तो मेरे साथ में जो होने वाला है ना, मैंने उनको बता दिया। मैं जाऊंगा ट्रेन में, जो मेरा बर्थ है वहां पे कोई बैठा होगा, फिर मैं उसको आर्ग्यू करूंगा, फिर मैं उसको उठाऊंगा, फिर मैं बैठूंगा, फिर मेरा लगेज रखना है, उस पे उसने लगेज रखा होगा, फिर मुझे सोना है और वो लोग हंसते चिल्ला रहे हैं, फिर मैं इतना फ्रस्ट्रेट होगा। मैं बोला लोगों में तमीज जैसा कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अभी क्या है, अभी तो 6 घंटे की और जर्नी है, बैठे हैं, आप कहां के, मैं कहां का, अच्छा गुजराती गुजराती, अच्छा अभी थेपला खाओ ना। अरे कल रात तो गाली दे रहे थे, आज इतना प्रेम कैसे आ गया? हम दुश्मन है या प्रेमी है, ये बताओ। द होल पॉइंट इट कैन बी वन, बट द पॉइंट इज कल इट वॉज अ टेरिबल एक्सपीरियंस, टुडे विद द सेम पीपल इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। चेंज क्या हुआ? अभी ये मैंने आपको 3 चीज बताई मेरी, फेविकॉल का, बिल्डिंग का, ये कोई नया चीज तो नहीं है ना। ऐसा तो हर जगह पे कितनी हद अपनी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। ये चीज कैसे मैनेज करनी, इसका कोई सेमिनार होता है? हाउ टू मैनेज
दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस विद द वर्ल्ड। अगर मैनेज करना आ जाए ना तो अपनी लाइफ कितनी हो जाए, कोई सेमिनार नहीं होगा, क्योंकि ये फैशनेबल सब्जेक्ट नहीं है। और आज फैशनेबल सब्जेक्ट क्या है? एल्डर और यंगर का जनरेशन गैप। सो फैशनेबल, इसके पे सेमिनार हिट के ऊपर हिट होते हैं। एंड वी आर टोल्ड आजकल चेंजेस इतने फास्ट आ रहे हैं that today young people have so much of choice, they are so smart कि generation gap has become very big। तो उनको है ना, मुझे ये थोड़ा दिखाना था। ये गाना लगाओ ना। चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ, टिक 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 टिक। चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ, टिक 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 टिक। चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ 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 हाँ, टिक 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 टिक। अभी ये जैसे आपने गाना देखा, कैमरा है ना कांस्टेंट रहता है, तो समझ जाओ ये कितना पुराना गाना होगा। ये मूवी आया था 1971 में, मतलब 50 साल पहले। जनरेशन गैप। पृथ्वी एक्चुअल में ये 3 अलग अलग जनरेशन और मूवी में दिखाते हैं। राज कपूर बेचारा बीच में फंसा हुआ था। ये जनरेशन का जो डिफरेंस होता है ना, वो जब से ह्यूमैनिटी पैदा हुई ना तब से चालू है, ये कोई आजकल नया नहीं है। When you are at a different age, obviously you think differently. There is absolutely nothing new. But suddenly हम लोगों ने इसको बहुत बड़ा बना दिया। Now let's understand. पहले एग्जाम्पल में क्या हुआ था? वो समझ रहा था फेविकॉल समथिंग, मैं समझ रहा था समथिंग। He took it for granted। मैंने फेविकॉल बोला ना तो सामने वाले को मालूम होगा। I took it for granted। फेविकॉल बोला ना तो मुझे मालूम है। लेकिन दोनों का कंटेक्स्ट अलग अलग था, क्योंकि वो बरसों से मास्कोट बनाता है। मास्कोट में उसको वही फेविकॉल मालूम है, उसको व्हाइट फेविकॉल उसने कभी देखा भी नहीं है। और क्योंकि मैं बरसों से इंडिया में देखा हूं, मैंने इतने कारपेंटर को काम करते हुए देखा, मैंने खाली व्हाइट देखा। ना कोई सही है ना कोई गलत है, दोनों की कंटेक्स्ट अलग अलग है। और जब कंटेक्स्ट अलग अलग है ना तो सोच अलग होगी। हॉस्टल बिल्डिंग में क्या हुआ? वो 15th फ्लोर से देख रहा है, मैं ग्राउंड फ्लोर से देख रहा हूं। दोनों के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव अलग अलग है। ग्राउंड फ्लोर वाले को कभी पता नहीं चलता है 15th फ्लोर से ये बिल्डिंग कैसा दिखता है, और 15th फ्लोर वाले को पता नहीं कि ये बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर से कैसा दिखता है। दोनों के पर्सपेक्टिव अलग है। एंड वेन एवर पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट, देयर इज गोइंग टू बी अ गैप। और मेरा थर्ड एग्जाम्पल, कल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था राम को, ये मेरे से अलग कैसे है? तो मेरे से अलग गाड़ी में ऐसे ही सामान रख देते हैं, ऐसे ही चिल्लाते हैं, ऐसे ही बात करते हैं। दूसरे दिन पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो गया, हमारे में कॉमन क्या है। और जब कॉमन आ जाता है ना तो पूरा चीज बदल जाती है। अपने में डिफरेंस क्या है उसकी बात करो तो पूरी चीज अलग हो जाती है। वैसे एक जनरेशन और दूसरे जनरेशन में भी वही चीज है। एक जनरेशन के पास में कंटेक्स्ट है 30 साल पुरानी, एंड पुरानी डज नॉट मीन ओल्ड, पुरानी मीन्स गोल्ड। दिस होल आइडिया ना, वो जमाना गया इज अ मिस्टेकन नोशन। जमाने का जो बेसिक चीज होती है ना वो कभी चेंज नहीं होती है। सो दे हैव अ कंटेक्स्ट। और क्या कंटेक्स्ट था इंडिया में? अभी आज जो भी है ना, इंडिया का पूरा बिजनेस, फैमिली बिजनेस हिस्ट्री मैं आपको बता दूं। अप टू 47 स्लेवरी, फिर पूरा फोकस आ गया पब्लिक सेक्टर के ऊपर। 5 ईयर प्लान 1, 2, 3। अभी जो चंद्रयान पे गया है ना,
वो अभी कुछ नहीं हुआ, प्रायोरिटी उस टाइम से शुरू हुई थी 5 ईयर प्लानिंग से, उसके कारण इसरो हुआ, उसके कारण सब डेवलप होते गया। बट बिजनेस के बारे में कुछ नहीं। 61 वॉर, 65 वॉर, 71 वॉर, 77 इमरजेंसी, टिल लेट 70s अर्ली 80s कोई बिजनेस ज्यादा नहीं था, खाली ट्रेडिंग। बड़ी बड़ी मिलें होती है, उसमें सप्लाई का काम करने का। मारवाड़ियों के वहां शादी होती थी उस टाइम, बहुत सारे लोग मिलते थे। क्यों मिलने का? भाई शादी में पता चलेगा कि इनके काका के ससुर का साला फिनिक्स में परचेज में है, तो हमें पहचान निकालनी थी, उसके लिए लोग व्यवहार में जाते थे। इतना बस वही बिजनेस था, खाली सप्लाई करने का, और तो कुछ कर नहीं सकते थे। इट वॉज ओनली लेट 70s अर्ली 80s दैट मोस्ट ऑफ द बिजनेस स्टार्टेड। आप बोलो धीरूभाई अंबानी बोलो, आप बोलो सन फार्मा बोलो, और आपका खुद का बिजनेस देखो। अभी 1980 में हालत क्या थी? स्टॉक मार्केट इंडेक्स वाज 100, आज जो 66,000 है ना, वो 100 था उस टाइम। टेलीफोन तो मिलते नहीं थे, 10 साल का वेटिंग पीरियड फॉर अ टेलीफोन कनेक्शन। तो फिर एक वर्ड निकाला उस टाइम, केयर ऑफ। सबके पास में मेरा फोन नंबर है ना, केयर ऑफ, और बिल्डिंग में जिसके पास में फोन है ना, उसको घंटी रखने की, भाई अभी इसको बुलाओ, अभी उसको बुलाओ, बिकॉज फोन ही नहीं मिलते थे। बॉम्बे से दिल्ली बात करनी आने तो बड़ा प्रोजेक्ट। एक बार फोन बुक करो, फिर वॉशरूम नहीं जा सकते हो, क्या पता उसी टाइम कॉल आ जाए, और 3 मिनट में बात खत्म करनी है अपने को। तो आज हमारे जैसे लोग जो उस टाइम काम करते थे ना, अभी भी हमारी प्रॉब्लम वही है। दिल्ली बात है ना, तो हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, क्योंकि वो 3 मिनट में खत्म करो, नहीं तो गया तो फिर वापस कितना टाइम लगेगा। स्कूटर के लिए 5 साल का वेटिंग पीरियड, 500 रुपया लगता था। इट वॉज टेल विंड वाणी को बता दूं, दैट वॉज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एट दैट टाइम, क्योंकि अगर लग गया ना, 1000 रुपया प्रीमियम मिलता था, गाड़ी मिलती नहीं थी। नाउ इट वॉज दैट कंटेक्स्ट इन विच वी स्टार्टेड बिजनेस। तो क्या करते थे? भी ट्रेडिंग करते थे, छोटा मोटा काम चालू किया, घर चलाने के लिए धंधा करते थे। और उस जमाने में ऐसा बोला जाता था, समझा जाता था कि जो पढ़ाई में अच्छे हैं ना, बैड लक, क्योंकि वो तो जॉब मिल जाएगी उसको। हम तो भाई पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या करेंगे, हमको तो धंधा करना ही पड़ेगा। तो बड़गादी में, सैमुअल स्ट्रीट में रोड पे जाके खड़ा रहने का, और फिर उसमें पता करने का, भाई यहां ट्रेड, इसके डाइस की ट्रेडिंग होती है। फिर एक व्यापारी के पास में दूसरे पे जाने का, फिर ब्रोकरेज चालू करने का, फिर ब्रोकरेज करते करते ट्रेडिंग चालू करने का। जब ट्रेडिंग कर रहे थे ना, तभी एक आईसीआई का केमिस्ट ने बताया तुम फैक्ट्री भी डाल सकते हो। फिर पता चला वापी में फैक्ट्री डालो, 25% स्टेट सब्सिडी, 15% सेंट्रल सब्सिडी और बैंक की लोन, और उसी तरह से लोगों ने फैक्ट्री डाली। दैट वाज अ पीरियड 80s टिल 95। जितने भी बिजनेसेस है ना, मोर और लेस दे सेटल्ड एज बिजनेस इन दैट पीरियड। तो कंटेक्स्ट अलग है। जब पैसा ही नहीं था तो हम तो 1-1 रुपया देखते थे। आज अभी मैं किसी से बात कर रहा था, ये लड़की की उसकी सास के साथ में बहुत कंप्लेन थी। क्यों कंप्लेन थी? जब ये शादी होके आई ना 15 साल 10 साल पहले, तभी उसने देखा इसकी सास की एक स्ट्रेंज बिहेवियर है। दूध थैली में आता है ना, बैग में आता है, तो दूध तो खाली कर दिया, फिर वो क्या करेगी? बैग को साफ करेगी और बैग को संभाल के रखेगी। अब ये बहू की समझ में नहीं आता है कि ये बैग को संभाल के क्यों रख रहे हो आप। वो बोलते हैं फिर इकट्ठा करके बेचेंगे, 6 रुपया किलो का मिलता है। नाउ टुडे इफ यू से 6 रुपये किलो का क्या मतलब है, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड कि 6 रुपये किलो का एक जमाने में मतलब था। तो उनकी कंटेक्स्ट थी कि जब ये 6 रुपये किलो का मतलब था, आपकी कंटेक्स्ट में 350 रुपये की कॉफी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपकी कंटेक्स्ट में 350 की कॉफी, उनके वहां पे पूरे महीने का बैग साफ करके थे जो 6 रुपया मिला, उसकी दोनों की कंटेक्स्ट अलग अलग हो गई। फिर हो गई अपनी बात पर्सपेक्टिव की। जो 15th फ्लोर है ना, उसको कैसे पता चलेगा ग्राउंड फ्लोर से कैसे दिखता है? जो 55 साल का है उसको कैसे पता चलेगा 25 वाले कैसे सोचते हैं? और 25 वाले को भी कैसा पता चलेगा कि 55 वाले कैसे सोचते हैं?
और फाइनली फोकस क्या है? आप में और हमारे में फर्क क्या है? आपका जमाना अलग था, और बड़े भी क्या बोलते हैं, हमारे जमाने में तो ऐसा था। तो डिफरेंस के ऊपर फोकस हो गया। अरे बिजनेस हमेशा बिजनेस रहता था, पैसा हमेशा पैसा रहता था। मैं लक्ष्मी जी को मिलता हूं कभी, मैं बोलता हूं आप किनके घर पे जाते हो, तो वो तो सीधा जवाब नहीं देते, मेरे को बोलते आप किसके घर पे जाओगे? मैं बोला जहां रिस्पेक्ट मिले। बोले मेरा भी वैसे ही है, जहां मुझे रिस्पेक्ट मिले वहां मैं जाती हूं। तो लक्ष्मी जी को रिस्पेक्ट करना उस टाइम भी उतना ही वैलिड था, आज भी उतना ही वैलिड है। पैसा बनाना है बोलने से नहीं बनता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। और क्या कर सकते हैं? एक ही तरीका है। बिजनेस का मतलब है ट्रांसफर मनी फ्रॉम योर पॉकेट टू माई पॉकेट, खुशी खुशी। मैं गन नहीं रखता हूं, ब्लैकमेल नहीं करता हूं, हैप्पी हैप्पी यू हैव टू गिव मनी। एक ही तरीका है, उस टाइम भी वही था, आज भी वही है, और आगे भी हमेशा वही रहेगा। दूसरों का दुख दूर करने में अपना कल्याण है। अभी दुख बदलते हैं, पहले दुख अलग था, भाई हमको खाना चाहिए, अभी दुख अलग है। अभी दुख है वी आर नॉट डूइंग इनफ फॉर अवर चिल्ड्रन। आप वैदिक मैथ्स का क्लास चालू कर दो, देखो क्या फिट होता है। और अगर आप बोलो नहीं मैं तो है ना सेवा करता हूं, मैं फ्री करता हूं, कोई नहीं आएगा, 5,000 रुपया चार्ज करो, देखो क्या क्लास फटाफट बिकता है। बिकॉज एवरी पेरेंट्स का दुख क्या है? वी आर नॉट डूइंग इनफ फॉर अवर चिल्ड्रन, और मेरे बच्चे ना पीछे नहीं रह जाने चाहिए। ठीक है, आज वो दुख है, पहले ऐसा कोई दुख ही नहीं था, भाई तुम खेलो, तुम पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, हम तो हमारा काम देखते हैं। मेरे फादर को कभी पता ही नहीं था मैं कौन से क्लास में हूं। सो नाउ दुख ही अलग अलग है। हियर इट इज, बट एक चीज क्या है? दुख दूर करने में कल्याण है। अभी मैं बोलूं वो उस टाइम जो हम लोग कर रहे थे वही आज करो, उसका कोई मतलब नहीं है। उस टाइम के दुख के लिए हमने उस टाइम काम किया, अभी के दुख के लिए अभी काम करने का। उस टाइम टाटा स्टील एंड सेल दो कंपनी थी स्टील बनाने वाली, इतनी मलाई मिलती थी ना, वो बोलते हम काम नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं बेचेंगे, तुम जाओ हमारे डीलर के पास में। तो भाई धंधा क्या था? टाटा स्टील या सेल की डीलरशिप मिल गई, रे रोड या लोखंड बाजार में ऑफिस है, बस गद्दी है, आराम से जाने का, शाम को नोट गिन के वापस आने का। बिकॉज दैट टाइम स्टील यूजर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स डिड नॉट टॉक टू ईच अदर। तो उस टाइम क्या स्टील ट्रेडिंग का धंधा हम कर रहे थे, बिकॉज दैट वाज द नीड एट दैट टाइम। फिर आ गए टाटा स्टील में नए एमबीए, नए मैनेजर्स, बोलते हम कॉस्ट कटिंग करेंगे, मार्जिन का प्रेशर है। तो बोलते मारुति जैसी कंपनी को, गोदरेज जैसी कंपनी को हम बोलते हैं डीलर के पास में जाओ, इसकी क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट सप्लाई करेंगे। तो वो तो मारुति को सप्लाई करने लगे, गोदरेज को लगने लगे। फिर बोलते अभी खाली बड़ी कंपनी क्यों, जिसको भी एक ट्रक चाहिए दो ना चालू। तो अभी टाटा एंड सेल सबको डायरेक्ट देने लगे, जहां पे खाली प्रॉब्लम है ना वहां पे डीलर को लाते हैं। तो आज के जो स्टील ट्रेडिंग का धंधा करते हैं ना, दे आर ऑल मनी लैंडर्स। बोलते कि हम स्टील का धंधा करते हैं, बट एक्चुअल में मनी लैंडिंग करते हैं। बट नॉर्मल मनी लेंडर तो क्या करता है, भाई मैं पैसा देता हूं ना सिक्योरिटी लेता हूं। स्टील के ट्रेडर तो है ना पैसा भी देते, सिक्योरिटी भी देते, और फिर बोलते अब धंधे में पहले जैसी मजा नहीं रही। दुख उस साल का, और अभी आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। सो हियर इज द पॉइंट दैट देयर इज नथिंग सो ग्रेट अबाउट जनरेशन गैप। इफ यू कॉल इट एज अ गैप, then it is everywhere. And if you call it that I need to understand other person's context, then it is everywhere. यही एग्जाम्पल में एक थोड़ा लाइटर साइड पे एग्जाम्पल है। एवरी मैरिज पहले 4 साल में 4 बार डिवोर्स की बात हो जाती है, हर मैरिज में। फिर ये पूरे ऑडियंस में मैं पूछता हूं, हाउ मेनी पीपल एग्री विथ मी, डोंट रेज योर हैंड। क्यों एम्बेरेसिंग करना? बट 90% पीपल एग्री विथ मी, और बाकी जो 10% है ना वो लोग झूठ बोलते हैं। रीजन एक सिंपल है, 2 इंडिविजुअल्स brought up in a very very different environment, they come together with only one agenda, सामने वाले को सुधारना है।
4 साल में पता चल जाता है सुधरने वाले नहीं है, बस छोड़ दिया, लाइफ इजी। ये तो मैरिज में भी है ना, यहां पे कोई बोलता नहीं गैप। द इश्यू इज कंटेक्स्ट दोनों की अलग अलग। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन कंटेक्स्ट, वी आर सेइंग आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। Whereas the real thing is, I am right in my way, you are right in your way. Problem क्या होता है? We don't want to talk. लड़की की शादी हुई इलाहाबाद में, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ी बड़ी विंडो, और पुराने बिल्डिंग तो वो पत्थर की विंडो का वो जो है। लड़की को अच्छी बहू बनना है, सुबह में जल्दी उठ के देख रही घर में क्या क्या होता है। देखा कि सास है ना, जाती है हर एक विंडो के पास में और पेपर चेंज करती है। हर विंडो पे पेपर रखा हुआ था, पुराना पेपर निकालती है, दूसरा पेपर रखती है। पूरी विंडो पे देखा, बहू ने देखा कि ये क्यों करते होंगे। फिर जब वो लास्ट पेपर निकल रहा था ना, तभी उसने देखा उसके ऊपर बर्ड का ड्रॉपिंग था। तो मतलब ये कबूतर के ड्रॉपिंग होते हैं ना, अगर वो पत्थर में चले गए ना तो अंदर से फिर साफ करने का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसकी सास ने बरसों से प्रैक्टिस बना के रखी थी कि पेपर रखते हैं और फिर पेपर हट नेक्स्ट डे चेंज करते हैं। लड़की ने डिसाइड किया नेक्स्ट डे मैं करूंगी। थोड़ी जल्दी उठ गई, सब पेपर चेंज कर दिए। सास आई, सास ने देखा पेपर चेंज हुआ है, लेकिन थोड़ा टाइम उसने सोचा, फिर क्या किया, जो भी पेपर थे ना उस सबको चेंज किया डायरेक्शन, सो दैट ऑल द पेपर्स आर विथ वन डायरेक्शन। आप चलते हो ना तो एक उल्टा पेपर एक उल्टा पेपर, ऐसा नहीं, सब बराबर आप पढ़ सके हो ना, इस तरह एक ही डायरेक्शन का पेपर। अभी सास क्या सोच रही है, इसको पेपर लगाना भी नहीं आता है। बहू क्या सोच रही है, ये पेपर पढ़ने के लिए थोड़ी लगाए थे, पेपर उल्टा है उल्टा है क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोनों बोलेंगे नहीं, हिसाब जमा होगा। एक एंट्री हो गई, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी। अभी ये हिसाब यहां तक आ गया ना, फिर एक मामूली सी बात होगी, उसमें फ्लेयर अप हो गया। और सुनने वाले को बोलते भाई क्यों फ्लेयर अप हुआ, चाबी किधर रखी थी ना वो पता नहीं था, उसमें इतना बड़ा झगड़ा। उसमें नहीं, झगड़ा तो पहले से हिसाब इकट्ठा होते जा रहा था। फिर एक दिन फ्लेयर अप उसके कारण हुआ, हम समझते उसके कारण हुआ। हर घर में एवरी पर्सन दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज वी डोंट स्पेंड टाइम एंड एनर्जी टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन। वो सास पूरे साल 25 साल उसने ये टेक्निक को परफेक्ट किया था। तो फॉर हर पुटिंग इन दिस वे मेक्स अस फील कंफर्टेबल। तो समझो ना कि भाई उसको वो कंफर्टेबल है। एंड द पॉइंट इज कि ये लड़की को थोड़ी मालूम है कि ये कैसे करना है, तो आई शुड टॉक टू हर। हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि अपनी कंटेक्स्ट के हिसाब से ही पूरी दुनिया है, ये हम लोग समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि दुनिया दूसरों की अलग होती है, और फिर टेंशन बढ़ता है। आई एम राइट यू आर रॉन्ग इज द रियल प्रॉब्लम। आई एम राइट यू आर राइट, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। हम लोगों को पता था कि भाई कोई भी काम करो जिंदगी में, लेकिन मैरिज काउंसलिंग का काम मत करना। क्या होता है, हस्बैंड आके डिस्क्राइब करता है ऐसा 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 सिचुएशन हुआ, काउंसलर ने बोला यू आर राइट, अगर तेरी जगह पे मैं होता ना तो मेरी भी यही हालत होती। फिर वो गया और वाइफ आई, उसने सेम डिस्क्राइब किया अपनी तरफ से, एंड सुन के बोला यू आर राइट, तेरी जगह पे मैं होता तो मेरी भी ये हालत होती। तो एक दूसरा आदमी ने देखा तो ये दोनों तो अपोजिट बात कर रहे थे, आपने दोनों को बोला तुम्हारी बात राइट है, तो इन्होंने बोला तेरी बात भी राइट है। द पॉइंट इज आई एम राइट एंड यू आर ऑल्सो राइट। द होल आइडिया दैट आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, इसके ऊपर ही पूरा झमेला है। द डे यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट आई एम राइट एंड यू आर ऑल्सो राइट, देन वी हैव टू पुट एफर्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। दिस इज वेयर आवर होल थिंग स्टार्ट्स। तो सबसे बड़ा जो फैमिली बिजनेस में है ना, ये एक्सपेक्टेशन की गलती है। बड़े लोग आज जो उम्र हो गई है जिनकी, आई विल टेल यू 50+, मोर और लेस सबकी हवा डाउन है। अब धंधे में पहले जैसी मजा नहीं रही।
बेटा तू कुछ और करना। ये एक स्टैंडर्ड डायलॉग है, और जो बेटे ने सुना, 5 साल से सुन रहा है, अब धंधे में पहले जैसी मजा नहीं रही, उसको पागल कुत्ते ने काटा है कि वो ये धंधे में जाएगा। और हमारे लोगों का मार्केटिंग देखो, आईएसबी में एक आदमी को 1 करोड़ का पगार मिला, इतनी मार्केटिंग, सबको एमबीए करना है। हम बताते नहीं कि उसको पहले 80 लाख का पगार था। जब कोर्स ज्वाइन किया ना, उसके पहला उसका 80 लाख का पगार था, कोर्स ज्वाइन करने के बाद में करोड़ का हुआ। सब समझते हैं मेरा कोर्स किया ना तो करोड़ का पगार मिलता है, तो एवरीबॉडी वांट्स टू डू एमबीए टुडे। किसी को पूछते हुए एमबीए में क्या होता है पता नहीं है, जॉब अच्छी मिलती है बस। सो बड़ों ने ये किया, छोटों यंग लोगों ने दुनिया भर का ग्लैमर देखा। उनकी ये पता नहीं कि भाई जो चमकता है ना उसके पीछे क्या होता है। चमकता है ना, बस हमने वो चमक देखी और तो कुछ देखा नहीं। तो बड़े लोगों का एक्सपेक्टेशन है ये सब धंधा हमने किसके लिए किया, चलाने वाला कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे। द पॉइंट इज नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट टू कंटिन्यू योर बिजनेस, नेक्स्ट जनरेशन इज टू कंटिन्यू योर लीगेसी in terms of understanding spirit. Business means fighters. Business means challengers. Business means people who want to climb Mount Everest. आपके जमाने में आपने अपनी तरह से किया, यही संस्कार आप जब बच्चों में डालते तो अपनी तरह से करेंगे। Is not that young people are to continue your legacy. आपने 30 साल पहले स्टील का धंधा किया था तो ये सोचो कि हमारे बच्चे भी स्टील का धंधा करेंगे। स्टील के धंधे में आना चाहिए जरूर, आने के बाद में सीखो कस्टमर क्या होता है, एग्जीक्यूशन में क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, बेसिक थिंग क्या होती है, डिसीजन लेना क्या होता है, एंड देन व्हेन योर अपॉर्चुनिटी कम्स यू आर गोइंग टू ग्रो इन योर वे। तो जो एल्डर्स का एक्सपेक्टेशन है ना, कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, और हमारा बिजनेस में तो अभी पहले जैसी मजा है नहीं, तो बस सब लोग वही बोलते हैं तू कुछ और करना। और जब अपने बेटे को 1 लाख रुपए का पगार मिलता है ना, फादर इतना खुश, भले ना अपने धंधे में करोड़ कमाते हो, लेकिन हमने किसी को कभी 1 लाख का पगार नहीं दिया। और जब बेटा 1 लाख कमाता है ना, हम तो क्या खुश हो गए, पता है उसको 1 लाख का पगार है। पॉइंट इज धंधा करेगा तो 100 करोड़ कमा सकता है। तो पेरेंट्स की जो बिजनेस वाले ना, उनकी आजकल हवा निकल गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर डिस्करेजिंग द यंगस्टर्स। और अभी यंगस्टर्स का एक टोटल मिसकंसेप्शन चलता है, एंड यू नो आई एम अ प्रोफेसर फॉर लास्ट 30 इयर्स। हर साल मेरी उम्र 1 साल से बढ़ती है, मेरे स्टूडेंट की एज सेम है। 30 साल पहले भी 20 से 25 था, आज भी 20 से 25 के स्टूडेंट है। आई नो यंग पीपल इनसाइड आउट। एक टोटल मिस्टेकन नोशन है, टुडेज जनरेशन इज वेरी स्मार्ट, इज अ स्टूपिड जनरेशन। स्टूपिड स्टेटमेंट। Every generation is always smart according to the exposure. आज का बोलता है पता है, ये 1 साल का बच्चा है ना, आईफोन ऐसे खेलता है, क्योंकि उसके लिए वो खिलौना है, उसको आईफोन टेक्नोलॉजी नहीं मालूम है। हम लोग घर में प्रोजेक्टर बनाते थे, स्कूल खत्म होती है ना, नोटबुक के हम लोग एक तो खाली जो पेजेस है ना इकट्ठा करके रफ बुक बनाते थे, और उसका जो कवर है ना उसको उठा करके हमने घर में प्रोजेक्टर बनाया। हम लोग स्मार्ट नहीं थे क्या? The point was, everybody is always smart to the extent of the things that you have seen. मेरे ग्रैंडफादर गांव में रहते थे, तो उनको गांव की चीज मालूम होती है। भाई कुछ बिच्छू ने काटा तो कौन सा पेड़ का कौन सा पत्ता लगाना वो उनको मालूम था, हमको नहीं मालूम था। तो everybody is always smart. They are neither idiot nor super smart. Everybody is in the journey, so we have to learn. लेकिन ये जब आ गया ना, बिकॉज टूडेज जनरेशन इज वेरी स्मार्ट, तो एल्डर लोगों ने डिसोन कर दिया। भाई हमको तो पता भी नहीं है, हमारे जमाने में तो क्या 3 कोर्स होता था, कॉमर्स करो, साइंस करो या आर्ट्स करो, अभी तो इतनी वैरायटी हो गई है, हमको तो पता भी नहीं चलता। तो हमने तो बोल दिया तुझे जो करना है कर, वी डोंट वांट टू इंपोज ऑन यू एनीथिंग। कुछ नहीं होगा ना तो अपना घर का धंधा है, खोटा सिक्का किधर भी नहीं चलेगा ना तो आ जाना। द होल पॉइंट इज, फिर आपने उसको किसके ऊपर छोड़ दिया? फ्रेंड सर्कल।
and friend circle will advise what is to be done. एक लड़के ने मुझे बोला 10th पास अभी हो रहा है, I want to do astrobiology. I said fabulous. लेकिन मेरे को बता कि मार्स के ऊपर अमीबा है कि नहीं वो जान के तू क्या करेगा? बोलता ऐसा होता है. मैंने बोला सिंपल चीज है, एस्ट्रो हैज टू डू विद प्लैनेट्स एंड बायोलॉजी का बेसिक एलिमेंट है अमीबा. तो मार्स के ऊपर अमीबा है नहीं, उसका साइंस है ये. तो मुझे नहीं, मैंने बोला तूने तो सिलेक्ट कर दिया. मेरे फ्रेंड ने बोला बहुत स्कोप है. हो गई बात. Young people don't feel offended, but I am telling you the fact is, one blind guides another blind how to go is the reality today. CS की बहुत डिमांड है. क्या डिमांड है? खाक डिमांड है. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर करना है. भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर करके इंडिया में क्या करोगे? चिप तो बनती नहीं है, पीसीबी डिजाइन होती नहीं है. द ओनली रियल जॉब अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इज टीवी रिपेयर. इलेक्ट्रॉनिक है ना उसमें. The point is, engineering was never meant for one particular stream. Engineering is to develop the mind to understand different connection. यहाँ पे ये गियर टूटा हुआ है ना, तो वहाँ पे वो गियर नहीं चलता है. So ability to go in detail for cause and effect understanding. ये जब mind develop होता है ना, एक engineer कोई भी चीज चला सकता है. It's nothing to do with कि आपने electronics में engineering किया तो आपको कुछ अलग wisdom आया. And by the time you finish, चिप अलग चेंज हो गई. सो कितने डायोड होते, कितने ट्रांजिस्टर होते, कितने कैपेसिटर्स होते, मुझे भी मालूम है. मैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट हूं. बिकॉज जो काम अपने को पड़ता है वो कोई भी सीख लेता है. सन फार्मा के चेयरमैन दिलीप संघवी बीकॉम ग्रेजुएट है. फार्मा कंपनी में टुडे यू कैन से इज अ फार्मा किंग. कैसे? एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ माइंड, नॉट ऑफ द स्ट्रीम. बट अभी तो इतना है, पता है ये बीएफएम करता है और बीएएफ करता है. हम तो टेबल के वो साइड पे ना, हमको मालूम है दोनों में फर्क क्या है. हमने 25 साल पहले जो लीवर करता है ना, आज अभी हमने सीख लिया. लीवर ने क्या बोला? सोप बनता है ना, सोप का मेन रॉ मटेरियल को नूडल्स बोलते हैं. नूडल्स होता है, वो सबको मिलता है, आपको और मुझे भी मिल सकता है. खाली उसमें कलर और परफ्यूम अलग अलग डालो. एक को लाइफ बॉय बोल दो, एक को लक्स बोल दो. बेसिक सोप सेम है. सेम वे ग्रेजुएशन बेसिक सेम इज सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. एंड व्हाट इज ग्रेजुएशन? डेवलपमेंट ऑफ माइंड टू थिंक क्रिटिकली. टिल ग्रेजुएशन, टिल स्कूल, वी आर सपोज टू रन सिलेबस माइंडेड पीपल. भाई इतना सिलेबस है, इतने में ये चीजें. अप टू स्कूल. ग्रेजुएशन मीन्स व्हाट? फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. बस इतना सब्जेक्ट है. अभी यूएस की सेंट्रल बैंक क्या करती है, यूके की सेंट्रल बैंक क्या करती है, इंडिया की सेंट्रल बैंक क्या करती है, दिस आई एम सपोज टू डू ऑन माई ओन. तो ग्रेजुएशन इज द डेवलपमेंट ऑफ माइंड. एनी स्ट्रीम इज, इफ यू डू इट वेल, देन योर माइंड डेवलप्स टू डू रीजनिंग. यू डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग जस्ट लाइक दिस. यू लर्न टू गो इन टू डिटेल. दिस इज ग्रेजुएशन. तो ये एक तो अपनी पहली गलती हो गई. बिजनेस ये सबके बस की बात नहीं है. मेरे जितने स्टूडेंट हैं ना, एमबीए में आते हैं, सबको फाइनेंस करना है. क्यों फाइनेंस करना है? फाइनेंस में पगार ज्यादा मिलता है. कितना यूजलेस. कैपेबल इतनी बनाओ, दुनिया तुमको सामने से ढूंढ लिया है. दैट वॉज एजुकेशन. I call it head hunting. You are so capable, 10 people wants you. सिक कंपनी में आपको देता हूं, you are known for turning around the company. That is what was education to be. Today they are so feeling so inferiority. इतना उनको insecurity लगता है. मेरी MBA कॉलेज में आने से day 1 प्लेसमेंट के लिए तैयारी करो. अरे 2 साल के बाद में प्लेसमेंट है. नहीं CV वैल्यू बनाओ. थोड़ा एनजीओ में भी बता दो, थोड़ा लीडरशिप बता दो, थोड़ा नाम के लिए मैंने कुछ एक क्लब चालू किया. ऑल दिस सो दैट आई कैन गेट अ जॉब. व्हेन वी स्टार्टेड एमबीए कॉलेज 30 years ago, वी थॉट वी विल मेक पीपल सो कैपेबल. मेरे को पगार नहीं चाहिए, मेरे को चैलेंज दो, टर्न अराउंड करता हूं, प्रॉफिट का पार्ट दो. दैट इज द स्पिरिट. वो हिम्मत होनी चाहिए. वो हिम्मत के बदले में आ गया. भाई मुझे ना वहां पे गूगल में जॉब करनी है. क्यों?
क्योंकि वहां पे स्टारबक्स की कॉफी फ्री मिलती है। जो लोग स्टारबक्स चालू करने का सपना सोच सकते थे, वो अभी स्टारबक्स की कॉफी फ्री मिलती है ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं। दिस इज द ट्रेजेडी। बिजनेस इज क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। अभी मेरा एक फ्रेंड है ना, मैं कल आया ना, तो ट्रैकिंग पे जा रहा है। वो जाएगा माथेरान। मैं बोला ट्रैकिंग माथेरान क्या बड़ी बात है, ऊपर तक तो गाड़ी जाती है। नहीं नहीं, हम बैक साइड से जाते हैं। तो क्या होता है, एकदम स्टीप क्लाइंब है। हम सुबह 5 बजे चालू करेंगे, 9 बजे ऊपर पहुंचेंगे। तो इतना ट्रैकिंग करेगा। मैं बोला फिर क्या करोगे? फिर नीचे आ जाएंगे। बोला तुम लोग क्या कर रहे हो? सीधा सीधा रास्ता है, वो छोड़ के उल्टे रास्ते से जाओगे, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाओगे। मैं नीचे क्या प्रॉब्लम है, मैं नीचे ही हूं। वो बोलता है तुमको समझ में नहीं आएगा, ऊपर से ना क्या ब्यूटीफुल दिखता है। मैंने बोला तू मेरे साथ में आ जा गार्डन में, क्या ब्यूटीफुल दिखता है। मैं उसकी टांग खींच रहा था। दूसरे दिन 3:30 बजे उठ के चला ही गया। जो ट्रैकिंग करने वाले होते हैं ना, वो आपके सर्टिफिकेट के लिए वेट नहीं करते। दे आर क्रेजी अबाउट ट्रैकिंग एंड दे विल डू इट। बिजनेस है ना क्रेजी लोगों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। दो पीपल आर अफ्रेड, मेरे से क्या होगा, मेरे से होगा या नहीं होगा या नहीं होगा, मैं दूसरे के यहाँ जॉब कर लूं, तो सारे हेडेक उसके। बिजनेस उनके लिए जो खुद हेडेक लेने को तैयार है, उनके लिए है ना बिजनेस, सबके लिए थोड़ी है। तो अभी माउंट एवरेस्ट का टारगेट लिया, मतलब क्या, गारंटीड गिरने वाले हो, गारंटीड प्रॉब्लम आने वाला है, गारंटीड ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा, एंड इज गारंटीड कि आप खाली 100 फुट नीचे होंगे ना, एबॉर्ट करके वापस आना पड़ेगा। बट माउंट एवरेस्ट पे जाना है ना, वो अलग लोगों का बस की बात है, और एक अच्छी जॉब मिल जाए ना, ये दूसरे लोगों की बस की बात है। दोनों की सोसाइटी में जरूरत है, दोनों की जरूरत है। बट द क्वेश्चन इज हु आर वी? बिजनेस फैमिली में पैदा हुए ना, तो आपके फैमिली ने आपको सिखाया हम तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले लोग हैं। तो आज से 20 साल पहले सोच लो, जो भी थोड़े बड़े यहां इधर बैठे ना, जरा घर में बात करके तो दिखाओ कि मेरे को जॉब करनी है। झापट पड़ेगी एक, बिजनेस ही करना है, ये बोलने वाले अपने पास में लोग थे तो अपने तकदीर अच्छे थे। आज तो कोई बोलता ही नहीं। जितने बड़े लोग हैं सबको मैं पूछता हूं, आपके फादर ने आपको झापट मारा कि नहीं मारा? आपने अपने बेटे को झापट मारा? नहीं मारा। हम नहीं मार सकते क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, तो आप बड़े नहीं बनते थे क्या? लेकिन फादर जब झापट मारते थे उसका मतलब क्या था? इज नॉट फिजिकल झापट, इट वॉज एसर्टिंग कि ऐसे ही होगा, विच यू लर्न सब्सिक्वेंटली। All said and done, every business person is the best professor in the world in business of making money. अभी समझो मैं आपको सिखाऊं बिजनेस कैसे बनाने का, तो मैं तो खाली बोल रहा हूं, उन्होंने तो एक्चुअल में बनाया। तो जितने घर में जो भी बिजनेस फैमिली में है, उनके तो घर में यू हैव अ सक्सेस स्टोरी। जरा पूछो तो फादर ने स्टार्ट कैसे किया था और कहां से कहां गए, और उनको जरा पूछो तो ग्रैंडफादर ने कहां किया था, एंड फ्रॉम वेयर दे हैव गॉन वेयर। You are born in a family of fighters, and just because you are disconnected and now you want to become just non-fighter. सवाल यह है, पिच पे खेलना है या स्टेडियम में बैठना है? पिच पे खेलोगे ना तो फास्ट बॉल आएगा, पिच पे खेलोगे ना तो धूप लगेगी, पिच पे खेलोगे ना सेंचुरी मारोगे, लोग तालियां बजाएंगे, जीरो पे आउट होंगे, लोग पत्थर मारेंगे। सवाल यही है, स्टेडियम में बैठो ना, कुछ नहीं, बैठे बैठे कमेंट मार सकते हो, सचिन ने गधे जैसा शॉट मारा, अरे उसका तुम बैट भी नहीं उठा सकते हो। पॉइंट इज आवर चिल्ड्रन विल हैव ड्रीम ऑफ व्हाट? मेकिंग बिग, क्रिएटिंग IBM या वर्किंग इन IBM। दिस इज वेयर इज आवर फर्स्ट एरर। आवर चिल्ड्रन आर टू बी ट्रांसमिशन एज चैलेंज, नॉट इजी थिंग्स। ये बड़ा चीज हो गया। अभी दूसरा सवाल यह आ गया कि हम लोग है ना बेसिक चीज में गड़बड़ कर रहे थे। हमारे MBA कॉलेज में क्या होता है, लड़की लड़कियां होती, दोनों MBA करते हैं, शादी होती है, दोनों को सिमिलर प्लेसमेंट मिलती है, दोनों कंपनी में मैनेजर है। अभी नाउ दे आर फैमिली वे, बच्चा होने वाला है,
तो ये तो बहुत समझदार लोग हैं। उन्होंने बोला देखो भाई, माई आवर चिल्ड्रन नो चाइल्ड, पहले 6 साल आर द एज फॉर रियल फॉर्मेशन, तो वन ऑफ द पेरेंट विल टेक केयर, आफ्टर दैट वी कैन हैव मेड और वॉट एवर इट इज। दे डिसाइडेड वाइफ विल टेक केयर। वाइफ ने जॉब छोड़ दी, बच्चा आ गया, सब कुछ चल रहा है, बच्चा 4 साल का हुआ है। एक दिन की बात है, हस्बैंड ऑफिस से घर पे आया, बेल डिंग डोंग, दरवाजा खुला, एक साइड पे वाइफ खड़ी, एक साइड पे बच्चा। वाइफ ने हस्बैंड की ओर नजर डाला और फिर नजर ऐसे घुमाते हुए बोले, यू बीट हिम, बच्चे को मारो। बस डायलॉग खत्म। अभी हस्बैंड को क्या करना चाहिए बताइए? दरवाजे पे खड़े हो, बताइए भाई, व्हाट शुड हस्बैंड डू? ये कोई बहुत इमेजिनरी स्टोरी तो नहीं है ना, होता है ना, मां बोलती है भाई बच्चे को मारो। अभी हस्बैंड को क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए कि नहीं? मारना चाहिए कि नहीं? नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? क्या हुआ? बस ये देखिए, इन्होंने एडवाइस दिया। हम लोग बिजनेस में एक चीज समझते हैं, जो चीज अपने को नहीं मालूम है ना, उसमें दूसरे की हेल्प लो। तो मैंने उनका हेल्प लिया। उन्होंने बोला पूछो क्या हुआ। तो मैंने वाइफ को पूछा भाई क्या हुआ? उसने बोला पूरा दिन मेरा खून पिया है। अभी बोलो, अभी आगे क्या करूं? और ये टिपिकल कंसल्टेंट है। उन्होंने बोला मैंने किया, अभी क्या? अभी मेरे को छोड़ दिया, अभी क्या करूं? बताओ बताओ भाई, कोई बताओ, कोई इतना इमेजिनरी चीज तो है नहीं। हाँ, व्हाट इज? बच्चे को पूछूं या वाइफ को पूछूं? वाइफ को पूछूं ना। पूरा दिन मेरा खून पिया, बोलती तो हूं, मतलब क्या? एंड लाइक स्टार्ट डिस्कसिंग एंड ऑन द डोर। ठीक है, नाउ यू वी होल्ड ऑन दिस। एनी अदर सजेशन? क्या करूं मैं? हाँ, क्या वापस चला जाऊं? तो हाँ, खून पिया ना। किसको बोलो? वाइफ को, बच्चे को? वाइफ को। ठीक है, अभी ये देखिए, आप इतना बड़ा, जो मैं आपकी एडवाइस पे चलूंगा ना, लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट एनीवे, आई विल कम टू योर रियल प्रॉब्लम। एनी अदर सजेशन? हाँ, पिक अप द चाइल्ड। फिर बच्चे को पूछो क्या हुआ। टिपिकल बच्चे के बदले मैं बोल देता हूं आज है ना मम्मी का मूड ठीक नहीं था। अभी क्या करूं? अभी आगे क्या करूं बताओ? हाँ, ओके कर दें। ठीक है, अभी देखिए, ये जो भी एडवाइस दी ना, आगे चल के क्या होगा मैं बता देता हूं। गुस्सा है, थोड़े टाइम में तो ठंडा होने वाला है, लेकिन आपकी एडवाइस के हिसाब से चले। फादर सोफे पे बैठा है, लड़का सोफे के पीछे जाता है, किचन से मदर आ रही है, लड़का मदर को दिखाता है, उसको मालूम है फादर को दिखेगा नहीं, फादर की बैक साइड है, और मदर को खाली एक मैसेज देता है, मार खिलाने वाली थी ना, क्या हुआ? You can't do anything. And now the mother's influence on the child has gone. The whole understanding was that mother will spend time with the child to groom the child. और उसमें उसको डांटा तो डांटा, but now that you have done this, अभी बच्चा क्यों सुनेगा? You can't do anything. At one shot, you have destroyed the respect that the child has for the mother. And incidentally, आपकी वाइफ में अकल कम है क्या? ठीक है, आप बोल सकते हो कि जो नहीं पढ़ी, लेकिन वो भी तो आपकी जितनी एमबीए, वो भी कंपनी में एमबीए जॉब कर सकती थी। The fact is, today must be a real tough step. तभी उसने पूछा ना, रोज तो नहीं बोलती है। And when in the front of child, if you question the wife, you are reducing her importance in the eyes of the child. Never to question one parent each other in front of child. That's a very, very important thing. And this is what is the basics of management. काम है ना बहुत छोटा है, लेकिन आज आप जो करोगे ना उसका इम्पैक्ट लंबा पड़ेगा।
अभी समझो क्या किया, इधर उधर देखा, इधर एक लकड़ी मिली, फादर ने लकड़ी उठाई और बच्चे को मारने लगा। अभी मदर क्या बोलेगी? क्या बोलेगी मदर? तालियां बजाएगी? नहीं। हाँ, स्टॉप, ये क्या कर रहे हो? अरे तुमने तो बोला। क्या बोला? यू बीट हिम। मैंने कब बोला? ये कोई तरीका होता है? नाउ शी इज टेलिंग अदर वे अराउंड। तो तुमने क्या बोला? नाउ आई विल टेल यू व्हाट शी टोल्ड। शी टोल्ड, माय डियर हस्बैंड, टुडे वाज अ टफ डे, okay? I failed to manage the situation, please help me. अभी हमको बोलना नहीं आता है, तो she says beat him. But basically she was telling that today I could not manage now, so you please help. What would have the best answer? Generally you do it very well. Today must have been a really tough day. Now I am here, I am taking charge. This could have been a good answer. The question is, हमको बोलना भी नहीं आता है और सुनना भी नहीं आता। जब लड़का बोलता है मेरे को ना एक ऐप बनाने का 2 करोड़ का खर्चा है, फादर डैड दे दो ना पैसा, डैड बोलता है ना, उसका मतलब है ना नहीं है, उसका मतलब है कि तेरी प्रपोजल है ना मुझे वायबल नहीं है, आई एम नॉट कन्विंस्ड। नहीं, हमारे फादर तो है ना सब नए जमाने को अपोज करते हैं। मोबाइल यूज करते कि नहीं करते हैं भाई? हम तो अक्ल की बात करते हैं, तू मेरे को आइडिया दिखा, उसमें पैसा दिख रहा है तो मैं बोलूंगा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। लेकिन फादर को भी ऐसा बोलना नहीं आता है। सो द प्रॉब्लम इज व्हेन पीपल स्पीक, एक्चुअली दे मीन समथिंग एल्स, एंड एबिलिटी टू लिसन इज ड्रास्टिकली गोइंग डाउन। वंस अपॉन अ टाइम बड़ों के सामने नहीं बोलना रूल था, तो भाई हमारे पास में कोई चॉइस ही नहीं था। अभी तो चॉइस है, डेमोक्रेसी है, सब कोई सब कुछ बोल सकता है। तो सुनने का तो ठिकाना ही नहीं रहा किसी का। Whenever 2 generation or 2 person talk, वोकेब्युलरी है ना अपनी बहुत लिमिटेड है। आप मुझे कुल माल बेचने आए, एक्चुअल में आप मेरे को जो माल बेचोगे उसमें मेरा फायदा है कि आपका फायदा है? आप मुझे माल बेचोगे उसमें मेरा फायदा है कि आपका फायदा है? अगर मेरा फायदा है तो ही मैं लूंगा। नाउ व्हेन आई एम टेलिंग यू नो, ऑल दैट आई एम टेलिंग यू इज आई हैव नॉट अंडरस्टूड कि इसमें मेरा फायदा क्या है। बस मैं आपको ना बोल रहा हूं, उसका मतलब है कि आप आपका चीज थोड़ा और स्टडी करो और मुझे बताओ कि मेरा फायदा क्या है। इफ आई बिलीव मेरा फायदा है तो मैं मान लूंगा। तो जब कस्टमर ना बोलता है ना, उसका मतलब क्या है? भाई वापस करके मेरे को समझाओ। इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू बाय। हियर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अवर टाइम, लिसनिंग। मैंने बोला, फादर ने ना बोला, बस खत्म हो गई बात। बट मैंने क्या बोला वो फादर को भी सुनने की जरूरत है, और फादर ने जो बोला वो मुझे भी सुनने की जरूरत है। दिस इज वेयर वी हैव अ बिग इश्यू। फिर क्या हो जाता है? Whatever people say and whatever they mean is very very different. फिर तीसरी बात आ जाती है। एक डायलॉग है, बहुत लोग है ना आजकल, पहले बिजनेस वाले ना सेमिनार अटेंड नहीं करते थे, अपना धंधा करते थे। पिछले 5 साल में एक बीमारी बढ़ गई है, सब लोग सेमिनार अटेंड करने लगे। और सेमिनार अटेंड करते ना तो बहुत नई नई चीजें सीखते हैं। आज सुबह में किसी ने बताया माइंडफुलनेस, फिर किसी ने बताया पॉजिटिव थिंकिंग। मैं बोल रहा हूं यार, किसी को मैंने 2 करोड़ का माल दिया, वो पैसा नहीं दे रहा है, मैं कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करूं? नहीं, थिंक पॉजिटिव, देन द सीक्रेट द होल यूनिवर्स। पैसा मिल गया, मानो। अरे मैं कैसे मानो? कल पगार देने का है। अरे यार तुम लोग है ना, छोड़ो, तुमसे नहीं करना है। सेमिनार के ऊपर सेमिनार चल रहा है, और उसमें फैमिली बिजनेस के ऊपर तो सेमिनार का एक स्टैंडर्ड डायलॉग है। फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट द बिजनेस, सेकंड जनरेशन कंसोलिडेट, और थर्ड जनरेशन क्या करता है? सुना है ना आपने? बंद कर देता है। व्हाट अ स्टूपिड डायलॉग। बट द होल वर्ल्ड, सब लोग इसी की बात करते हैं। जितने भी सेमिनार में जाओ, यहां तक कि मैं गया केन्या, एक अपना बिजनेसमैन मिला, मेरे को बोलता है सर मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने बोला भाई क्या प्रॉब्लम है? माई सन वॉन्ट्स टू जॉइन द बिजनेस। आई सेड ये तो अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? नहीं, माई फादर स्टार्टेड द बिजनेस।
थर्ड जनरेशन बर्बाद ही कर देगा। ऐसा इन्होंने जो बोलते हैं ना, झूठ चीज को बार बार बोलो ना तो उसको सब सच मानने लगते हैं। द इश्यू इज इट हैज नथिंग टू डू विद जनरेशन, इट हैज टू डू विद कॉम्प्लेक्सिटी। व्हेन आई एम नॉट मैरिड आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, व्हेन आई गेट मैरिड then I can do what I want up to some extent. Now I have to handle other side also. When we are husband and wife, we can still do whatever we want, but when we get children, then we have to do something for us and something for them. As complexity grows, we have to learn to manage complexity. It has nothing to do with generation. Complexity को handle करना पूरी जिंदगी में, आज एक typical family business है। ये बिजनेसमैन को आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, आप ये पार्टी को उधार दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, आज तक तो किसी ने नहीं पूछा। अभी ये लड़का या लड़की कॉलेज स्कूल में पढ़ते आ गई और फिर बोलना चालू किया, आप कैसे जज करते हो पार्टी को कैसे देने का? अभी फादर ने आज तक किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, उनको एक्सप्लेन करना आता ही नहीं है। नहीं, मेरे को जो ठीक लगे ना उसको मैं देता हूं। अरे लेकिन ठीक कैसे लगता है? अरे वो मुझे जो ठीक लगता है ना, लेकिन ठीक कैसे लगता है? लड़के लड़की ने पूछा और फादर ने जवाब नहीं दिया तो लड़के लड़की को लगा हमारी जीत हो गई। आर्ग्यूमेंट में वी वन विद द फादर, बट द पॉइंट इज ही हैज नॉट इवन स्पोकन, बिकॉज पूरी जिंदगी में कभी बोलना सीखे ही नहीं है। वी हैव नेवर एक्सप्लेन एनीबॉडी व्हाट इज अवर रीजन। तो रीजन एक्सप्लेन करना हमको आता ही नहीं। पूछना है ना तो मुझे पूछो, मैं प्रोफेसर हूं। अगर फादर कुछ करते तो क्यों करते वो मैं बताता हूं। हमारे एक फ्रेंड है, बर्तन की दुकान, लड़के पढ़ के आ गए फॉरेन एमबीए में क्या सिखाया? कस्टमर फोकस। फादर को बोलना चालू कि आप है ना कस्टमर से बराबर ट्रीट नहीं करते हो, कस्टमर इज द किंग, कस्टमर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। फादर बोलते भाई ठीक है जो भी है, अभी जो हम वर्षों से करते हैं वो करते हैं, क्या करें। लड़का अभी मौका ढूंढ रहा है, दुकान बंद होने का टाइम हो गया, दुकान बंद थी, कांच का दरवाजा था, थोड़ा बंद किया, अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, तभी बाहर से कोई नॉक कर रहा है। नॉक, फादर ने देखा कोई बाहर आदमी खड़ा है। वो आदमी ने बोला, फादर ने बोला, लड़के ने देखा, मौका मिला ना, पता है वो कस्टमर था, तो पता है उसको कोई 2-3 वाटी चाहिए। मैंने बोला कल आना। आपको कैसे मालूम अगर उसको 1 लाख वाटी चाहिए तो? तभी फादर बोला देख भाई, जिसको 1 लाख वाटी चाहिए ना, उसका ऐसा ऐसा करने का तरीका अलग होता है। अभी ये बेटे को कैसे सिखाया? ये जो नजर है ना, ये ट्रांसमिट करना इजी नहीं है। एक ज्वेलरी की दुकान थी, शटर डाउन कर रहे थे, तभी एक आदमी आया, पैजा और टिपिकल महाराष्ट्रियन सांगली वाला आदमी, वो डर्टी क्लोथ्स, बोलता है बंद कर रहे हो क्या? हाँ, क्या कुछ लेना है? हाँ देखना है। शटर खोलो। ओनर ने बोला, शटर खोला, फिर उसने देखा आधा पौना घंटा, 50 लाख का ज्वेलरी लिया, फिर बोलता है मैं कल आता हूँ, टोटल 2 करोड़ का लेने का है। मैं जितनी भी दुकान में गया ना, उन्होंने बोला आज दुकान बंद हो गई है, कल आना। लेकिन फादर का जजमेंट था, कपड़ा देख के नहीं, आदमी का देख के कि ये आदमी कस्टमर होगा। अभी इसको हमारे पास में कोई बुक नहीं है कि हम आपको सिखा सके कि ये 10 चीज देखने की। इज अ एक्सपीरियंस एंड इट हैज नो रिप्लेसमेंट। दुनिया भर के कोई भी कॉलेज में जाओ, वो आपको एक्सपीरियंस ट्रांसमिट नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो तो कोई बोलता नहीं है। एजुकेशन काउंसलर के हिसाब से ये कॉलेज में जाओ या वो कॉलेज में जाओ, अपने घर की कॉलेज के अगर मैं काउंसलिंग करूं तो मुझे क्या फी मिलने वाला है? तो कोई काउंसलिंग तो करता ही नहीं कि भाई घर में जो है, जिनके पास में 25-30 सालों में दुनिया देखी हुई है, उनसे भी तो कुछ सीख सकते हो। और सीखने के लिए ना पहले सर झुकाना पड़ता है। तो अपनी तो सिंपल ट्रेडिशन थी, फादर के पैर छुओ, पेरेंट्स के पैर छुओ। छू नहीं सकते हैं। जो अब आदमी बहुत एरोगेंट है ना, वो बैंड नहीं हो सकता। और उसके लिए दिस पर्टिकुलर सिस्टम केम, क्योंकि जब बैंड होते हो ना, तो अपने आप आपकी केमिस्ट्री चेंज होती है, ह्यूमिलिटी अंदर आती है। जब तक आप झुके नहीं, ह्यूमिलिटी नहीं एरोगेंस है, जब आप झुके ना, ह्यूमिलिटी आ जाती है। और फॉर एवरी पेरेंट, पेरेंट नहीं फादर, लड़का तो गधा है,
कितने बजे उठता है, ये क्या धंधा करेगा, लेकिन द मोमेंट सर पे हाथ रखा ना, 1 सेकंड में सब गलती माफ. The relation between the two generation, where the younger one with humility accepts that we are what we are because of your sacrifice, because of your struggle, because of your effort. Now once you do that, that is where the wisdom transmit from one generation to another. PK मूवी देखा है? PK, उसको तो अर्थ की भाषा नहीं मालूम है ना, तो भाषा सीखने का क्या तरीका था? हाथ पकड़ो, आंख बंद करो, और फिर वहां का नॉलेज यहां पे ट्रांसमिट होगा. प्रीवियस जनरेशन के पास में विजडम है, उनका हाथ पकड़ोगे ना तो वो विजडम तुम्हारे अंदर ट्रांसमिट होगा. अपने घर की कोई वैल्यू नहीं, और दुनिया के प्रोफेसर, और पर्टिकुलरली लंदन में जाके पढ़ोगे तो क्या सीख लोगे? उसको कौन सा मालूम है जीएसटी सेट ऑफ क्या होता है? नहीं, लंदन पढ़ के आया हो ना, बस खत्म हो गई बात. लंदन घूम के आया हूं बोलते ना तो ज्यादा अच्छा लगता है. दूसरा चीज है ना, टोटल 10 गलतियां हैं, तो अभी मैं चौथी पे आया हूं. ये प्रॉब्लम और पैराडॉक्स, ये दो चीज अलग अलग होती है. हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं. मेरे जो काका है ना, उनका नेचर बहुत खराब है. छोटी छोटी चीज पे इतना गुस्सा कर देते हैं, तो क्या करने का? कुछ नहीं. दैट्स इट. ही इज लाइक दैट. दैट्स इट. पैराडॉक्स मीन्स लर्न टू लिव विथ इट. तुम कुछ नहीं कर सकते हो. प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन. पैराडॉक्स मीन्स जस्ट लिव टू इट. मेरे फादर को है ना हर चीज में डिटेल में जाने की बहुत. मैंने उनको बोला ना कि मेरा एक आइडिया है, ये ज्वेलरी ऑनलाइन बेचूंगा. 1000 सवाल पूछ लिया मेरे को, और मैं जितना जवाब तैयार करता हूं और सवाल पूछते हैं. अभी डिटेल में जाने की उनको आदत है ना, तो है. तुम चेंज नहीं कर सकते हो. कभी खुद को चेंज करने की कोशिश की? जब अपने आप को चेंज नहीं कर सकते तो दुनिया को चेंज करने की क्या सोच रहे हो? इन फैमिली मीन्स एक्सेप्ट एवरीबडी एज दे आर. डोंट थिंक ऑफ चेंजिंग एनीबडी. फैमिली मीन्स पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन. लिव विथ इट. जितने भी अंकल या फादर या जो बहुत गुस्सा करते हैं ना, घर के सब लोग बोलते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं. तो जो अच्छे हैं उसके ऊपर देखो ना, चिल्लाते उसके ऊपर क्यों पकड़ के बैठे हो? सो दिस इज वेयर इट इज. फिफ्थ, ये टाइमिंग का सवाल है. बच्चों को बिजनेस के बारे में कब सिखाना चाहिए? अभी वापस ये ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुसियास्टिक पेरेंटिंग में क्या आ गया? अगर वो अभी से बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा ना तो फिर पढ़ाई नहीं करेगा, तो बिजनेस से दूर रखो उसको. फिर एक बार एमबीए करके आएगा, फिर तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना अपना बिजनेस करने के लिए. सवाल यही है, 3 साल जब बीबीए करते हो, अपना इनकम टैक्स रिटर्न अपने को बोलते ना यहां साइन करो, वहां पे साइन कर देते हो. इनकम टैक्स रिटर्न में क्या भरा है ना वो भी अपने को नहीं मालूम. फिर बीबीए खत्म करने के बाद में तो पता चलता है कि 15,000 की जॉब मिलती है, तो फिर एमबीए करने चलेंगे. फिर आप एमबीए किया, अभी तो प्लेसमेंट करना पड़ेगा. अभी प्लेसमेंट किया, अभी कंपनी में 1 साल काम करने के बाद में पता चलता है इतना मजा नहीं है जितना हमने सोचा था. तो भी ये वर्ल्ड टूर करने के बाद में फैमिली बिजनेस में आता है. इमेजिन somebody else who was very clear from the age of 12 बिजनेस ही करना है. By the time you come at the age of 27, उसको 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है. स्टार्टिंग वेरी अर्ली, वेरी क्लियर बिजनेस ही करना है. कोई भी करो, ये जरूरी थोड़ी यही बिजनेस करोगे. दिस इज व्हाट इज द पॉइंट. और कैसे ग्रूमिंग होता है? एक फैमिली में 12 साल का लड़की है, 10 साल का लड़का है. वेकेशन पे जाना है. पेरेंट्स ने दोनों को बुलाया, देखो भाई वेकेशन पे जा रहे हैं, तुम लोग बजट बनाओ, जितना बजट बनाओगे उतना पैसा लेके जाएंगे, और अगर पैसा कम पड़ा ना जो होगा साथ में फेस करेंगे. तिरुवनंतपुरम गए, पद्मनाभ टेम्पल देखा. एक जमाने में लोग मंदिर दर्शन करने जाते थे, अभी मंदिर देखने के लिए जाते हैं ना? मंदिर देखा, बाहर निकले, जस्ट फादर ने बोला लेट्स हैव अ पिज्जा. और जब अभी तक तो ऐसा था भाई जो इच्छा हुई वो करते हैं,
तो सब पिज्जा शॉप की ओर चलने लगे। लड़का थोड़ा रुका, फिर धीरे से बोलता है देयर इज नो बजट। अभी ये पेरेंट्स बच्चों को क्या सिखा रहे थे? बिजनेस, लर्न टू एंटिसिपेट द रिक्वायरमेंट, कीप अ ट्रैक ऑफ एक्चुअल विथ व्हाट इज हैपनिंग, एंड व्हेन इट इज नॉट देयर लर्न टू से नो। दिस इज द ट्रेनिंग। इज नॉट नेसेसरी कि स्टील के कितने ग्रेड होते हैं, इज नॉट कॉल्ड बिजनेस। बिल कैसे बनता है इज नॉट कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस इज अबाउट स्पिरिट। लड़की हो गई है, 15 साल के लड़का हो गया, 13 साल वापस वेकेशन पे जा रहे हैं। फादर ने मैंडेट दिया, टोटल अपने पास में 16 करोड़ की वेल्थ है। बोलो सब घर के लोग बोल दो अपने अपने लिए कितना पैसा रखना चाहिए उतना बाजू पे रखते हैं, बाकी का धंधे में लगाते हैं। 15 दिन का वेकेशन है, लड़की लड़के दोनों को मालूम है कि सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। ऑन 12th डे द डॉटर इज आस्किंग द ब्रदर, तू क्या बोलेगा? ब्रदर लोग तो पहले बोलेंगे नहीं, बोलते तू क्या बोलेगी? तो फिर सिस्टर बोलती है मैं बोलूंगी मैं फॉरेन एजुकेशन के लिए जाऊंगी, मेरे लिए 50 लाख साइड में रखना। तू क्या करेगा? लड़का बोलता है मैं भी फॉरेन एजुकेशन के लिए जाऊंगा, मैं बोलूंगा मेरे लिए 50 लाख साइड में रखना और 2 करोड़ मुझे ना बिजनेस करना है तो कैपिटल साइड में रखना। तभी लड़की बोलती है कि व्हाई शुड यू आस्क मनी फ्रॉम फादर टू डू द बिजनेस? वंस दे गिव एजुकेशन इज इट नॉट इनफ? शुड वी नॉट डेवलप ऑन आवर ओन? जब 15 साल की लड़की और 13 साल का लड़का ये बात कर रहे हैं ना, इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। तो फॉर्मेशन इज नॉट इन स्कूल। इतनी बड़ी इंप्रेशन, गलत इंप्रेशन, अच्छी स्कूल में डाल दिया, वर्ड भी है डाल दिया, रखा ऐसा भी नहीं बोलते। अच्छी स्कूल में डाल दिया, हो गया कल्याण। क्या कल्याण होगा? IIB के स्कूल में डाला है तो अभी तो उसको पता है, इतना ट्रिक का पता चलेगा कि नाइकी ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है, क्योंकि क्लास के सब बच्चे ना उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। तुमने नाइकी का शूज दुबई से लेके आया, सारा ग्रुप डिस्कस करेगा, अरे ये तो डुप्लीकेट है, इज्जत गई। अच्छी स्कूल में ये होता है। द होल पॉइंट इज दैट स्कूल हैज इट्स ओन रोल, होम हैज इट्स ओन रोल। ये जिम्मेदारी छोड़ दी ना, तुझे जो करना है कर, इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इन लाइफ। ऑफ कोर्स दे आर ग्रोइंग, यू डू, बट वी शुड डिस्कस। अपने घर में डिस्कशन का माहौल होना चाहिए। हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर सके, ऐसा कौन सा घर? मुझे जो भी लगा मैं बिन खुलेआम बोल सकूं, कोई मुझे ये नहीं बोलेगा यू आर इडियट, कोई मुझे ये नहीं बोलेगा यू आर झूठ, बिकॉज एवरीबडी विल अंडरस्टैंड मैं कौन से माहौल से क्या चीज बोल रहा हूं। दिस इज कॉल्ड ग्रूमिंग। बिजनेस इज इन एब्डिकेशन. The right thing is induction. Induction means what? Take every opportunity to take your children to different situations. My daughter was 4-year-old. I was taking her to Amul Milk Factory. तो मैंने हाथ में उठाई है उसको मैं बोलता हूँ देख यहाँ पे ना रोज का 10 लाख लीटर दूध इकट्ठा होता है, एक टैंकर में 10,000 लीटर आता है, तो दिन के 100 टैंकर आते हैं। फिर हम लोग गए सेकंड फ्लोर पे बोला मैंने, देख इधर है ना, इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं, ये हाई आरपीएम में रोटेट होता है, तो जो लिक्विड है ना वो बाहर चला जाता है, पाउडर अंदर सॉलिडिफाई होता है। मेरे साथ में स्टूडेंट था, वो मुझे बोल रहा है सर आप इसको बोल रहे हो, इसको कुछ समझ में आता है? मैंने बोला आपको भी कुछ समझ में आता है? The point is you are hearing the word centrifugal machine for the first time at the age of 24. She is hearing for the first time at the age of 4. That's it. Second time when you will hear, you would have known centrifugal something. Second time she will hear, she would have known something. The point is that it has nothing to do with age. It has to do with our spirit, that we want to form our children not money-minded, confident people. I can do anything. ये स्पिरिट अपने बच्चों में लानी है। कहां पे पैसा ज्यादा मिलेगा, ये स्टूपिड आइडिया। कैपेबल बनो, एंड दैट इज व्हाट यू मेक अ डिफरेंस। दिस इज द कॉन्फिडेंस। सो दिस इज वेयर इज दिस थिंग। ये आ गया, अभी आ गया प्रोसेस। बच्चे बड़े तो हर घर में हो जाते हैं, लेकिन जो उनको तैयार करना ना, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। उस पर एफर्ट डालनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, उनको समझना पड़ता है। मिशन मंगल करके मूवी है, देखा है किसी ने? लड़की घर पे नहीं आई,
फादर चिल्लाने लगा, तभी मदर उसको बोलती है, लड़की की इतनी फिगर है ना, तो उसके कौन से फ्रेंड है ना, उसका भी नंबर रखना सीखो. द पॉइंट इज दैट एल्डर्स शुड टेक टाइम टू ग्रूम द चिल्ड्रन. आपकी लाइफ में आपने कितना पैसा बनाया ना, इज गोइंग टू बी इमटेरियल. आपके बच्चे कितने कैपेबल बने ना, दैट इज द सक्सेस ऑफ योर लाइफ. सो टू स्पेंड टाइम विथ कस्टमर. कस्टमर तो आएगा जाएगा, अपने बच्चे एक बार गए ना तो फिर वापस नहीं आएंगे. तो स्पेंडिंग टाइम इन डिस्कशन विद देम. कैरम खेलने की जरूरत नहीं है, उनके विचार सुनो, अपने विचार बताओ. डिस्कशन विद इन फैमिली. माई जनरल प्रिस्क्रिप्शन टू एवरीबडी विथ एनी एज चिल्ड्रन, एवरी वीक स्पेंड 2 hours in family discussing about the business. ये कस्टमर ऐसा था, ये आदमी बहुत पुराना छोड़ के गया, उनके यहाँ इनकम टैक्स का रेड हुआ. पीपल शुड जस्ट डिस्कस, दैट्स इट. हर हफ्ते 2 घंटा, 52 वीक्स, 104 घंटा, 10 साल अगर किसी ने ये सब डिस्कशन किया ना, पूरा बिजनेस कैसे चलता है ना पता चलता है. स्कूल और कॉलेज से नहीं पता चलता है. ओके, देन हमारे सारे स्टूडेंट बिजनेस फैमिली के, तो उनके पेरेंट्स हैं. सब पेरेंट्स की एक ही कंप्लेन है, ये 11 बजे तक तो उठता नहीं, ये धंधा क्या करेगा. 7 बजे ना फैक्ट्री में होना चाहिए. अब मैं तो प्रोफेसर हूं, मैं तो सबको बोल सकता हूं. मैं बोलता हूं आपको नींद नहीं आती है तो आप जल्दी उठ जाते हो, तो आप 7 बजे पहुंच जाते हो. किसने बोला 7 बजे फैक्ट्री जाने से ही धंधा होता है? पूरी दुनिया फैक्ट्री चलाती है, क्या सब 7 बजे जाते क्या? आप जाते हो. और किसने बोला आप आदर्श हो? आप तो धीरूभाई अंबानी नहीं हो ना. द पॉइंट इज, वो 11 बजे उठता है ना, वो बहुत चुपता है. अरे वो 11 बजे उठने के बाद में क्या कर सकता है वो डिस्कस करो ना. इसको बोलते प्राइमरी एंड सेकेंडरी. हमारे जमाने में, अरे आपके जमाने में बार बार क्यों याद दिलाते हो? द पॉइंट इज, कितने बजे सोते हैं, कितनी पार्टी करते हैं, कितने बजे उठते हैं, कैसा हेयर स्टाइल रखते हैं, कैसे फटे हुए जींस पहनते हैं, ये सब सेकेंडरी चीज है. प्राइमरी चीज है, आर दे बिकमिंग कॉन्फिडेंट, आर दे बिकमिंग ड्रीमर्स, डू दे वांट टू अचीव ग्रेट थिंग इन लाइफ. तो प्राइमरी चीज के ऊपर फोकस करो ना, सेकेंडरी चीज छोड़ दो. आप अभी की बात करते हो, मैंने आपको मूवी का शॉट दिखाया ना, उसी टाइम अमिताभ बच्चन का मूवी आ रहा था और बाल है ना ऐसे कान पे रखते थे, तो हमने भी रखा. मेरे फादर तो इतने हम पे गुस्सा हो गए, ये क्या बाल बनाया हुआ है. उनके हिसाब से मिलिट्री कट इज द ओनली कट. नाउ द पॉइंट वाज, कैसे भी हमने हमारे टाइम में फैशन किया, वो उनके टाइम में फैशन करेंगे. द पॉइंट इज, दीज आर ऑल सेकेंडरी थिंग. प्राइमरी थिंग इज अबाउट कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर इज अबाउट कॉन्फिडेंस, हिम्मत. ये खड़ा करना, दिस इज व्हाट इज आवर जॉब. नाउ इज दिस होल बिगेस्ट प्रॉब्लम. 25 साल पहले हमारा फैमिली बिजनेस का कोर्स शुरू हुआ, हमारे क्लास में 10% गर्ल्स. आज 25 साल के बाद में भी हमारे कोर्स में 10% गर्ल्स. लड़कियों तो बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है. बहुत साल पहले गुजराती में एक बुक लिखी गई, मीरा भट्ट करके ऑथर थी. उसके एक सन और एक लड़का और लड़की थी, 3 साल के हुए. बच्चों की बुआ डॉटर के लिए एयरिंग लेके आई और उसने बोला उसको एयरिंग लगाना है. मदर ने बोला नहीं, एयरिंग नहीं लगाना है. घर में तो झगड़ा हो गया. अपने आप को क्या समझती है, हम लोग प्रेम करते, ये करते, वो करते, वही बोलना नहीं बोलना, बट टेंशन हो गया. फिर तो जो भी होना था, उसने तो नहीं लगाने दिया. फिर रात को बेडरूम में हस्बैंड बोलती है, ये तू क्या कर रही है? डोंट यू वांट योर डॉटर्स टू डेवलप फेमिनाइन क्वालिटीज ऑफ काइंडनेस, कंपैशन, केयरिंग? तभी उसने जवाब दिया, ऑफ कोर्स आई वांट माय डॉटर्स to develop qualities of kindness, compassion, caring, but I want my son also to develop the quality of kindness, compassion and caring. And the way I want my son to become courageous, I want my daughters also to become equally courageous. So ये जो grooming है ना, suddenly एक चीज आ जाती है, daughters मतलब डॉल से खेलो.
एंड बॉयज मतलब मोनोपोली खेलो, ये इनबॉर्न नहीं है, ये हम लोग बनाते हैं। एंड एनीवे, माई जनरेशन, योर जनरेशन, जो बड़े हैं ना, वो जनरेशन अलग था। मेरे घर पे एक पत्थर था बड़ा, धनिया आती है ना, उसको काट के पत्थर पे डाल के, एक छोटा पत्थर था, ऐसा ऐसा घिसते थे, तभी चटनी बनती थी। कपड़े एक लकड़े का बड़ा चीज होता था, उसको धोखा बोलते, धोखा, उसे कपड़े साफ होते थे। पानी की हमेशा शॉर्टेज थी। अभी वो कहां पे, आज कहीं इसने पत्थर तो देखा नहीं। गैजेटाइजेशन हैज रिड्यूस्ड द रोल ऑफ वीमेन इन द किचन ड्रास्टिकली। हर चीज के लिए गैजेट है। और यहां तक कि मैं दुबई में जब घर लेने गया तो मैं सोच रहा था यार पहले वॉशिंग मशीन चाहिए अपने को। मैंने किसी को बोला यार वॉशिंग मशीन नहीं है तो आदमी रहेगा कैसे, तभी उसने मुझे याद दिलाया एक जमाने में ना वॉशिंग मशीन नहीं थे, फिर भी लोग कपड़े धोते थे, बकेट में भी कपड़े धो सकते हो। बट गैजेट की इतनी आदत हो गई कि गैजेट हो गया, तो विथ गैजेट्स द डोमेस्टिक थिंग हैज कम डाउन ड्रास्टिकली। सेकंड, आचार भी बनता था और पापड़ भी बनता था और नाश्ते तो घर के ही होते हैं, वो सब जमाना गया। अभी आउटसोर्सिंग, तो अभी तो आचार, प्रिया आचार कितना अच्छा बनता है। सो एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड। थर्ड, घर में हम नौकर रख सकते हैं, लेकिन नौकर का एंट्री अलग है, किचन में अलाउड नहीं, वो घर के लोग ही करेंगे। अभी वो जमाना गया। नाउ हेल्प इज एक्सेप्टेबल इन एवरीथिंग। So now what has happened? The role of women, which was so much active in traditional society, in house has come down drastically. Business में लोखंड बाजार, मैं बताता सैमुअल स्ट्रीट, ये सब बाजार में मार्केट थे। ट्रक वाले आते हैं, वर्कर हेल्पर रहते हैं, गालियां बोलते हैं, किधर भी यूरिनेशन करते हैं, टॉयलेट इतने गंदे होते हैं। एक ही था, अच्छे घर की महिलाएं यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ये था, सही हाथ था 25 साल पहले, लेकिन आज स्काई स्क्रैपर, चकाचक बिल्डिंग है, प्रॉपर टॉयलेट्स है, बिजनेस हैव बिकम स्पेस न्यूट्रल। मैं इतना ट्रैवल करता हूं, आधा काम मैं एयरपोर्ट पे बैठ के करता हूं। रात को 2 बजे भी बैठा हूं तो मैं ईमेल कर सकता हूं। बिजनेस हैज बिकम टाइम न्यूट्रल एंड बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस हैज बिकम जेंडर न्यूट्रल। इंदिरा नोई बिकम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पेप्सी, नॉट बिकॉज उसका फेस अच्छा है ना, उसके लिए उसको आगे रखा है। She proves capable that man or woman, both, if trained, can do business equally. Then, when it was a joint family, 4 भाई थे, एक डेथ हो गई, उसकी पूरी 5 बच्चे को बाकी के 3 लोग संभाल लेते थे। तो जॉइंट फैमिली वॉज एन इंश्योरेंस सिस्टम। न्यूक्लियर फैमिली में अगर हस्बैंड को कुछ हुआ और वाइफ को बिजनेस मालूम नहीं है, इट विल बी अ बिग डिसास्टर। All I have seen, things come in front of me. And finally, when they are capable, if you don't give them space, then energy तो है ही, तो फिर क्या होगा? इंग्लिश विंग्लिश देखा आपने? इंग्लिश विंग्लिश, बस आजकल बच्चों का वही है। मदर ने तो पहले शादी होके आती है, बोलती है काम करना है, ससुर जी आ जाते दिल खोल के, काम करने की क्या जरूरत है, जो चाहिए ना मैं पैसा देता हूं, हो गई बात। फिर तो हो जाते बच्चे, फिर तो बच्चे बड़े करने हैं, और बच्चे बड़े करना मतलब तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। उसकी स्कूल में कौन सा प्रोजेक्ट दिया वो भी तो मम्मी को पता होना चाहिए। तो अब मम्मी आपस में एक दूसरे से बात करती है कि भाई ये प्रोजेक्ट में ये है, उसकी ये टीचर तो ऐसी है, वो टीचर तो ऐसी है, फिर उसको ये क्लास में लेके जाने का है, फिर उसको वो क्लास में, फुल टाइम एजी बिजी। तो उस टाइम मम्मियों ने देखा ही नहीं कि दुनिया में क्या है, उनकी दुनिया यही घर था। 20 साल के जब बच्चे हो जाते ना, मम्मी को इंस्ट्रक्शन, मेरे जींस को हाथ नहीं लगाना, खत्म। लड़की को बोला तू क्या खाएगी, आज तो मैं फ्रेंड के साथ में खाना खाने वाली हूं, खत्म। अभी कोई पूछता नहीं है। फादर और डॉटर बात कर रहे हैं, ये डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, यूरो वीक हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? मदर ने तो 20 साल दुनिया देखी नहीं थी, जब यूरो इंट्रोड्यूस हुआ उसको पता ही नहीं है। उसने बोला ये यूरो कौन सी कंट्री की करेंसी है? तभी डॉटर बोलती है मम्मी ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा।
मम्मी ने विड्रॉ किया, दूसरे कमरे में चले गए, रिमोट लिया, एक साथ 10-10 टीवी सीरियल मॉनिटर कर रही है अभी। एक दिन हस्बैंड घर से आए थे ऑफिस से, मुझे आपसे बात करनी है। करते ना, तो नहीं अर्जेंट बात करनी है। क्या अर्जेंट? अभी क्या भी बात करनी है? हाँ बोलो। धंधा में कौन कौन है? अरे मैं और भाई दोनों हम लोग कर रहे हैं। कौन क्या देख रहा है? अरे भाई मैं फैक्ट्री देख रहा हूं, मार्केटिंग देख रहा हूं, ब्रदर एडमिन इज फाइन। लेकिन क्या बात है? तुमको पता है बिजनेस फाइनेंस का क्या होता है? अरे देख रहा है ना भाई। क्या भाई देख रहा है? धीरे धीरे सब साइड में कर देगा, तुम्हारे पार्ट पे आएगा थम्स अप। आज ही सीरियल में दिखाया है। एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में डाइवर्ट नहीं करोगे तो वो डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में गारंटीड जाने वाली है। दिस इज द नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फैमिली वीमेन। दे डोंट हैव टू गो टू ऑफिस, बट दे मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज डेट, दे मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट, दे मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मैन पावर। मेरा परचेज वाला पैसा खाता है, मैं उसको निकालता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो काम एक कर रहा है ना, मैं बहुत डिपेंडेंट हूं उसके पर। जिस दिन मेरे पास में बैकग्राउंड में तैयार होगा ना, तभी मैं निकालूंगा। ये प्रैक्टिकल चीज है विच एवरीबडी नीड टू नो। तो माई स्ट्रॉन्ग सजेशन इज ग्रूम डॉटर्स इन बिजनेस, नॉट फॉर बिजनेस। एक लड़की आई हमारे एडमिशन लेने के लिए, इंक्वायरी किया, फॉर्म भरा, गई। बाद में उसके फादर का फोन आया, अभी अभी मेरी डॉटर है ना आपके यहाँ एडमिशन के लिए आई थी। बोला हाँ, मेहरबानी करके उसको एडमिशन मत देना। अभी मेरी जिंदगी में ये पहला फोन है। अभी तक सब फोन आते हैं, मेहरबानी करके कुछ एडमिशन दो ना, कुछ करो ना, एडमिशन दो। ये पहला फोन है, एडमिशन मत देना। अभी मैं क्यूरियस हूं, लेकिन मैं पूछूं उसके पहले उसने ही बोलना चालू कर दिया, यू नो शी इज अवर ओनली डॉटर एंड यू नो एज अ फादर व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उसकी शादी की बात करते हैं, वो बोलती है नहीं, अभी अगर आपका कोर्स ज्वाइन कर देगी तो और 2 साल डिले हो जाएगा। एंड यू नो एज अ फादर व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी बोलते हैं, मेरी सुनते थोड़ी है कि एज अ फादर व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो खाली बोलते मेरे को सुनना था। अभी मैं क्या करूं बताइए? द गर्ल इज एन एडल्ट इंडिविजुअल ऑन हर ओन मैरिड, शी हैज कम व्हेन शी इज फिटिंग फॉर द एडमिशन क्राइटेरिया। फादर इज अ कंसर्न फादर, और मैं तो फैमिली बिजनेस का प्रोफेसर हूं, मुझे तो फैमिली डायनेमिक्स भी मालूम है। क्या करूं? फादर की सुनूं या बेटी की सुनूं? इसको बोलते हैं धर्म संकट। कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अपने आप रास्ता निकल जाता है। जब ओनली डॉटर है ना, वो जो बोलती है ना वही होता है। आर्ग्यूमेंट करो, लेकिन आखिर में तो वो जो बोलती है ना वही होता है। एडमिशन हो गया, कोर्स खत्म हुआ, शादी हो गई, H1 वीजा हस्बैंड का था, अमेरिका गई। हस्बैंड के सारा फ्रेंड सर्कल आ गया। बेचारी लड़की इंडिया से आई है, उसको बताना पड़ेगा यहाँ दूध कैसे मिलता है, यहाँ कचरा कैसे ट्रीट करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, किस तरह होता है। सैटरडे संडे 2 दिन तो पूरी कोचिंग। कम मंडे मॉर्निंग एवरीबडी वैनिश। घर में अकेली, अभी फ्री हुई, विंडो से देखती है तो एवरीथिंग इज फार अवे। पता चला यहाँ तो कहीं जा ही नहीं सकते। जब हस्बैंड शाम को आएगा और वो लेके जाएगा तो जा सकते हैं, अदरवाइज जेल। हस्बैंड को आने दो। शाम को हस्बैंड आया, उसने बोला सी दिस इज लाइक अ जेल, आई वांट ड्राइविंग लाइसेंस। हस्बैंड ने बोला देखो भाई मेरी छुट्टी खत्म, अभी तुमको जाना है तुम करो, ठीक है ना, मैं करती हूँ। तो पहुंच गई ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस में। अभी ड्राइविंग लाइसेंस में सामने हट्टा कट्टा टॉल अमेरिकन आदमी बैठा है। वो अमेरिकन है कैसे पता चले? मुंह में जब च्युइंगम चबाते रहते ना तो वो अमेरिकन है। तो ऐसे 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 चबाते चबाते बोलता है यस। इसने फॉर्म भर के दिया, उसने चबाते चबाते फॉर्म देखा, रिजेक्ट दे दिया। बेचारी लड़की अमेरिका में पहली बार गई है, सामने हट्टा कट्टा टॉल अमेरिकन आदमी बैठा है, उसने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। क्या करना चाहिए? वापस जाओ। ये वापस नहीं जा रही है। मे आई नो द रीजन फॉर रिजेक्शन? हाउ डेयर यू आस्क? बट शी आस्क। अभी क्या करे सामने वाला? ही सेड आफ्टर 9/11। आपको पता है 9/11 वो प्लेन गए थे ना अंदर, ये स्टोरी है 2004-5 की। तो आफ्टर 9/11 वी हैव इश्यूड स्टॉप्ड इश्यूइंग लाइसेंसेस टू द स्पाउसेस ऑफ H1 वीजा होल्डर। मतलब जो H1 वीजा है ना, उनके जो स्पाउसेस आते हैं ना, दे डोंट कम फॉर वर्क वीजा, सो वी हैव डिसाइडेड नॉट टू इश्यू देम ड्राइविंग लाइसेंसेस। अभी तो उसने रीजन बता दिया, अभी तो वापस जाओ, वो वापस नहीं जा रही है।
She says 9/11 happened because of lapse of your security. By not giving driving license, you are giving me punishment. For what? अभी ऑफिसर भी वैसे कोऑपरेटिव होते हैं, समझदार होते हैं, बोलते यू हैव अ पॉइंट बट इट कैन नॉट बी डन. तो लड़की बोलती ओके, इट कैन नॉट बी डन बाय यू, टेल मी हु कैन डू इट. बोलता है इफ यू वांट यू कैन गो आवर बॉस. तो शी गोज टू द बॉस, सेम स्टोरी रिपीट्स, इट कैन नॉट बी डन, इट कैन नॉट बी डन बाय यू, टेल मी हु कैन डू इट. बोलता है यू मे ट्राई सेनेटर. अगले हफ्ते शाम को फादर के ऊपर फोन आता है, डैड आज है ना मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया. हमारे मार्केटिंग प्रोफेसर ने सिखाया था जब तक कस्टमर डब्बे में नहीं आया ना तब तक छोड़ने का नहीं. सी द फॉर्मेशन, सी द कॉन्फिडेंस. और जो फ्रेंड के सारे फ्रेंड सर्कल थे ना, जो बेचारी लड़की को हेल्प करने आए थे, अभी वो लोग क्या बोलते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम हो ना तो उसके पास जाओ. Daughters have to be groomed not only to come to your office, they have to be groomed to become strong individuals. And the best way to do it is to be involved in business. Business में पता चलता है कि कोई भी डिसीजन लेना ना इजी नहीं है. एक आदमी आके बोलता है सर आपकी एडवाइस चाहिए. भाई क्या एडवाइस चाहिए? मेरे को ये डबल पगार की ऑफर मिली है, क्या करूं? अभी एडवाइस ले रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है. या तो आप मैच करो, नहीं तो मैं जाता हूं. पीक सीजन चल रही है, एक्सपोर्ट के ऑर्डर है, प्रोडक्शन का इंचार्ज है, अभी क्या करूं? अगर मैं उसको डबल पगार करता हूं ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सिग्नल चला जाता है, इधर है ना नाक दबाने से पैसा निकलता है. किसी को काम अपना बताने का ही नहीं, सब अपने कंट्रोल में रखने का, फिर पगार मांगने का. किधर जाएंगे? देना ही पड़ेगा. और अगर मैं उसको निकालता हूं, एक्सपोर्ट में डिफॉल्ट आ गया, उस टाइम क्या करने का? देयर इज नो राइट आंसर, इट रिक्वायर गट्स टू टेक डिसीजन. ये जब डिसीजन लेते टाइम जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना उसमें कॉल लेना पड़ता है. एंड देन आफ्टर 6 months व्हाट हैपेंड? आइदर थिंग्स आउट वेरी वेल और इट बिकेम अ बिग प्रॉब्लम. व्हेन दे आर देयर देन दे विल अंडरस्टैंड डिसीजन राइट भी जाते हैं, रॉन्ग भी जाते हैं. आप चाहे कितने भी जीनियस हो, 10 में से 4 डिसीजन तो आपके भी गलत होने ही वाले हैं. आप बहुत एवरेज आदमी हो ना, 10 में से 5 तो आपके भी सही होने वाले हैं. एंड इफ यू आर एब्सोल्युटली डम्ब, खाली फ्लिप से डिसीजन लेते हो टॉस करके, फिर भी 10 में से 4 तो आपके भी सही जाने वाले हैं. द पॉइंट इज डिसीजन लेना एंड फेस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डिसीजन टर्निंग आउट टू बी रॉन्ग. ये बिजनेस में सीखते हैं. आई रिक्वायर अनदर सेशन टू एक्सप्लेन यू. बिजनेस इज द ओनली स्कूल टू लर्न रियलिटीज ऑफ लाइफ. भरोसा जैसा कोई चीज नहीं होता. कस्टमर आज बहुत प्रेम से बात करता है, कल बोल देता है भाई मेरे को दूसरा सस्ता मिलता है, चला जाता है. एक आदमी अपने साथ में 20 साल से था, सडनली एक दिन बोलता है कि अभी मैं जा रहा हूं. एक आदमी बहुत भरोसे वाला था, उसने एक बड़ा फ्रॉड कर दिया. ऑल दिस थिंग हैपेंस एवरी डे. तो बिजनेस इज नॉट फॉर ट्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इज फॉर लर्निंग अबाउट हाउ द लाइफ वर्क्स. तो सन एंड डॉटर बोथ शुड बी ग्रूम्ड इक्वली. And now my main concern, parents की concern होती है, and which is a genuine concern because मैं तो family business का professor हूँ. अपने यहाँ पे सिस्टम है, अपने यहाँ पे मतलब पूरे वर्ल्ड में सिस्टम है, इसको बोलते हैं वीमेन एक्सोगामी. शादी के बाद में लड़की ससुराल जाती है. अभी ये है तो है, वाई ऐसा क्यों? भाई बोलो आप ऐसा क्यों, लेकिन है. अभी हम उससे उल्टा तो नहीं कर सकते. मे बी इट इज द मोस्ट इरेशनल सिस्टम इन द वर्ल्ड. मेरी डॉटर ने मेरे को समझाया कि इसमें तो प्रॉब्लम होता है. अगर लड़का वाइफ के वहां जाता ना तो वाइफ पेरेंट्स की बराबर केयर करती. अभी तो वाइफ को ससुर सास ससुर की केयर करनी है, और सास ससुर से उसका क्या लेना देना? उसका लेना देना था उसके पेरेंट्स के साथ में. तो अगर शादी के बाद में लड़का वहां जाता ना तो पेरेंट्स केयर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता. मेरी डॉटर ने मेरे को समझाया. बट द पॉइंट इज ये तो आज है नहीं. सो लड़की ससुराल जाती है तो लड़की की शादी भी करनी या नहीं करनी? जब लड़कियां 20-21 की होती ना, बोलती मैं तो शादी करूंगी ही नहीं. कोई बात नहीं, हिमालय पे जाके रहो तो शादी के बिना चलेगा. ये सोसाइटी में अगर रहना है ना, टू लिव अलोन इज अ टफ थिंग बिकॉज सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट. आज तुम्हारा 25 लोगों का ग्रुप है, सबकी अपनी अपनी शादी हो जाएगी, देन यू विल बी अलोन. सो यू हैव टू मैरी, यू हैव टू गो. नाउ अगर वो पेरेंट्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाती है
तो ससुराल में बात क्या होती है, हमने तो पहले से बोल दिया वो तो बिजनेस करेगी, सास ससुर बोलते हैं हाँ हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फिर 2-3 महीने के बाद में एक लाइन ऐड होती है, एज लॉन्ग एज घर का काम देख लिया। और फिर 5-6 महीने में तो लाइन चेंज हो जाती है, घर पे संडे को गेस्ट आने वाली और ये मैम साहब चलिए अपनी मीटिंग के लिए। द पॉइंट इज इफ द वुमन इज इन्वॉल्व इन पेरेंट्स बिजनेस, तो एक पैर उधर है एक पैर इधर है, प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू कम। ये रियलिटी है। तो द ग्रूम डॉटर्स नॉट फॉर द बिजनेस, इन द बिजनेस, सो दैट दे बिकम स्ट्रॉन्ग एंड वेर एवर दे गो, either they got into a husband's business or they can do their own business or they can live their life with confidence and courage. This is the whole idea. Gap, generation gap है तो एक बात है, जनरेशन में सोच अलग अलग है तो अलग बात है। जब गैप है तो मैं राइट यू आर रॉन्ग, व्हेन वी से वी आर डिफरेंट आई विल एक्सप्लेन यू माय वे ऑफ थिंग, यू एक्सप्लेन मी योर वे ऑफ थिंग एंड वी विल डिस्कस। एंड लास्ट, जनरेशन में जो डिफरेंस है ये अपनी वीकनेस है, ये प्रॉब्लम है या ये सबसे बड़ी ताकत है? When father has a 30 years wisdom, the son or daughter is dynamism and want to run, is it our strength or is it our weakness? जब आप weakness बोलो तो आप रो उसके ऊपर, और strength बोलो तो you are very proud. So comes the point कि अगर multiple generation learn to understand each other, be proud of each other, respect each other, then they become a solid team. And this is the real strength of family business. जहाँ family नहीं होता है ना, everybody has to start from zero. जहाँ पे family होता है ना, 30 years का experience हाथ पकड़ने से यहाँ ट्रांसफर हुआ, फिर उसका experience हाथ पकड़ने से वहाँ ट्रांसफर हुआ। अभी जब हम लोग गए थे, टर्की गए थे, बहुत ठंड थी, तो मेरे को खांसी हो गई, तो मेरी वाइफ ने बोला हल्दी वाला दूध पियो। वैसे मेरी मदर भी बोलती थी, मैंने बोला तुझे किसने बोला? तो मेरी मदर ने बोला। मैं बोला तेरी मदर साइंटिस्ट थी क्या? नहीं। तो फिर उसको ऐसे मालूम कि हल्दी वाला दूध पियो? क्योंकि उसकी मदर ने बोला था। उसकी मदर साइंटिस्ट थी क्या? वो साइंटिस्ट नहीं थी, लेकिन उसने सुना था और फिर प्रैक्टिकल में देखा भी। तो जब साथ में रहते हैं ना तो ये विजडम एक से दूसरी जगह जाता है, जब अलग ही रहते तो पता ही नहीं है। हमारे यहाँ फ्रेंच वो जर्मन वाला लड़का आया, उसको हमने मेरी वाइफ ने बोला ये है ना दाल और दही साथ में नहीं खाते हैं। बोलते क्यों? अभी उनके वहां पे तो कोई बोलने वाला ही नहीं है, तो द्विदल जैसा कोई चीज होता है उनको तो पता ही नहीं है। फ्रेंच की लड़की थी, सर दर्द हो रहा है, मेरी वाइफ ने बोला सर दबा के दूं? बोलते सर दर्द से दबाने से क्या होता है? दवाई खाने की होती है। अभी सर दर्द करता है, दबा से भी अच्छा लगता है, उसको पता ही नहीं है। बिकॉज दे हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम जीरो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू बिलोंग टू अ फैमिली इज अ प्रिविलेज, इफ यू बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इन योर लाइफ। इफ वी लर्न टू वर्क टुगेदर ईच अदर, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट वी कैन डू फॉर ईच अदर। थैंक यू वेरी मच। A very good afternoon to everyone. I know we're running short of time, but if you permit us, can we have the forum open for a question and answer session? If anyone has, generally nobody has. If anyone has any questions. अभी जो मैंने बोला ना वो हजम होने में थोड़ा टाइम लगता है। But anyway, if there is question somebody has, then tell me. मेरे हर जगह पे सेमिनार में ये होता है, ऑर्गेनाइजर को लगता है बाद में Q&A रखने का। मेरा तो एक्सपीरियंस है कि अभी अगर Q&A रखना है ना तो एक हफ्ते बाद में रखना चाहिए, तो अभी सब हजम हुआ। हाँ लेकिन मैंने वो तो पूछा नहीं, लेकिन आपने वो बोला वो कैसे हुआ था, तो हो सकता है। Anyway, still anybody has any question, tell me. I think we have a few questions. She has a question, उसके लिए पहले दूसरे को बोल रही है, ठीक है? Yeah, sir. It was a nice discussions which was going on. Like I wanted to ask, that you said कि we have to groom children from early as soon as 4 or 5 or 10. So I have 9-year-old son.
he, like since last 3-4 months, he's saying ki, what you are earning, Papa, what is your net worth? And how much you earn daily or monthly, like that. So how to tackle these type of questions? I will ask, how do we decide on the income? जो सेल होता है उसको इनकम बोलते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसको इनकम बोलते हैं, या कैश सरप्लस को इनकम बोलते हैं? ये इनकम है ना, इसके ऊपर जब दुनिया सोचती है तो मोर इनकम और लेस इनकम से बात करते हैं, या इनकम में हम ग्रोथ कैसे करते हैं उससे बात करते हैं. तो इज नॉट नेसेसरी दैट आई गिव हिम द फिगर, आई टेक द क्लू टू टेक डिस्कशन टू द वैल्यूज. आज अगर कोई कम इनकम कर रहा है उसका मतलब ये नहीं कि उसके पास में कुछ नहीं है, और आज अगर किसी के पास में ज्यादा इनकम है, इज नॉट दैट दे आर जीनियस. राइट टाइम पे जो राइट जगह पे था तो लॉटरी लग गई. नारायण मूर्ति 1982 से 1992 बिजनेस में थे जीरो. 92 में एक जगह पे थे, तभी Y2K का एक प्रॉब्लम आया तो जो भी आईटी में थे सबकी लॉटरी लग गई. कोई भी अगर बिजनेस में बहुत बड़ा हो गया ना, उसने नहीं किया, राइट टाइम पे राइट जगह पे था. और अगर कोई फ्लॉप भी हो गया ना, उसने भी कोई गलती नहीं की. Things may turn out to be wrong. So don't judge people by income, judge by their dynamism, judge by things that they have done. Don't go for only success, celebrate failure also. This is how we will discuss. Sir, good morning. Sir, as usual, we were mesmerized by your discussion and 2 घंटा कब निकल गया पता नहीं चला. I also have a son who's 22 and daughter is 21. So सारे problems आपने जो बोला I think were very similar. प्रॉब्लम बोला ना उन्होंने, है ना? सिचुएशन नहीं बोला. देखो हमारी यही सिचुएशन होती है, नहीं बोलते हम उसको प्रॉब्लम बोलते. कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ये हमारे स्टूडेंट है तो मैं इनके लिए कुछ भी बोल सकता हूँ. So it's not a problem actually, we keep on discussing और काफ़ी सब बातें हुई है. So एक बात आप जो बोले जो मैं जानना चाह रहा था कि you said about being net debt zero. So वो आप जरा एक्सप्लेन करोगे कि when you said that people want to be debt free, so I believe in that. What's wrong with that? I didn't know that. वो जरा आप बताओ सर, मैं समझना चाह रहा हूँ. आप तो कभी टाटा स्टील बना ही नहीं पाओगे, है ना? क्योंकि आपकी कैपिटल है कितनी? 100 करोड़, 1000 करोड़, बस स्टील बनाने के लिए 15,000 करोड़ चाहिए. तो आप तो कर नहीं पाओगे. आप कभी शिप तो खरीद नहीं सकते हो, आप कभी एयरलाइन तो चालू नहीं कर सकते हो, क्योंकि धंधा अगर करना है ना तो खाली अपने पैसे की कैपिटल तो बहुत कम है. बिग बिजनेसेस कैन फॉर्म्ड ओनली एंड ओनली इफ देयर इज बोरोइंग. और अगर सब बिजनेस वाले बोरोइंग बंद कर देते तो बैंक की हालत क्या होगी? पूरी बैंक का काम क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन एक जगह पे होता है, एंड दिस रिसोर्सेज आर टू बी चैनल टू प्रैक्टिकल कैपिटल एप्लीकेशन. बिजनेसमैन बोरोज मनी टू अप्लाई इन वेल्थ जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर आज मेरे पास में 100 रुपया है तो मैं 100 रुपये का यूज करूंगा, लेकिन 100 के सामने मैं अगर 300 बोरो करता हूं तो मैं 400 की कैपिटल से धंधा करूंगा. और वो खाली बिजनेस वाले कर सकते हैं, सैलरी वाले तो धंधा कर नहीं सकते. सो फॉर सोसाइटी इट इज नेसेसरी दैट बिजनेस पीपल हैव टू लर्न टू बोरो. बट बोरोइंग इज द बेस्ट थिंग, बट बोरोइंग फॉर स्पेक्यूलेशन इज डिजास्टर. आज 65,000 का इंडेक्स है, मुझे किसी ने टिप दिया है ये कंपनी है ना 8 डब्बे में है, लेकिन ये डबल हो जाने वाली है. घर गिरवी रख के पैसा लेके पूरा लगा दिया है, ये गलती है. ठीक है, बट आप बिजनेस कर ही रहे हो, आपका तो लॉजिस्टिक्स का धंधा है, 4 ट्रक और लगाएंगे ना तो ये सेक्टर कवर कर सकते हैं. तो आपको तो धंधा मालूम है, आपको ट्रक मालूम है, आपको डीजल का चोरी मालूम है, आपको मालूम है पेट्रोल ड्राइवर मिलते नहीं है, फिर भी धंधा कर रहे हो, तो आप 4 ट्रक लगा सकते हो बोरो करके. मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे को नहीं मालूम, थोड़ा थोड़ा ही मालूम है. सो द होल पॉइंट इज बोरोइंग इज द बेस्ट थिंग टू डू एंड हैव इट रिस्पॉन्सिबली फेसिंग इट. हाँ जी सर. So, sir, fantastic session. I mean, really mesmerized as Akash rightly said. So, एक छोटा सा thought मुझे जो है mind में मुझे लगा मैंने आपसे पूछना चाहिए. जैसे I come from a business family, but something very unique is my grandfather started a business. वो मेरे father ने continue नहीं किया. He started a business from scratch. He made it big. मैंने वो continue नहीं किया. I started a business and I'm taking it to my level.
एंड समवेयर आई हैव अ थॉट कि मेरे बच्चे बिजनेस करें, लेकिन आई एम नॉट वेरी कीन दैट दे ज्वाइन माई बिजनेस. आई वॉन्ट, क्योंकि मेरी एक सोच है कि बिजनेस को बड़ा नहीं बनाना है, कैरेक्टर को बड़ा बनाना है. और मुझे लगता है कि जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है वो कैरेक्टर को बड़ा बनाता है. तो आई वॉन्ट योर ओपिनियन ऑन. दो तरह से हो सकते हैं. सॉरी, आपके ग्रैंडफादर ने तो आपके फादर को झापट भी मारा है ना. जी सर. द पॉइंट इज दिस, आपके साथ में खाली प्रैक्टिकल चीज सीखना है. जी. नो चिल्ड्रन टुडे, द फैमिली बिजनेस इज नॉट देयर डेस्टिनी, दैट इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट. बेसिक चीज समझ लो, फिर तो वैसे भी उनको अपना ही करना है. 30 साल के बाद में क्या इंडस्ट्री होगी, क्या लाइफ होगी, अपने को तो नहीं मालूम है. बट इफ दे आर स्ट्रांग, विच दे कैन डू वर्किंग अंडर यू जस्ट टू लर्न, नॉट दैट लाइफ टाइम दे आर गोइंग टू वर्क, बट वंस दे लर्न देन दे कैन डू. दुनिया आज एक कोई भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो बोलता है मैं ना एक ऐप बनाने वाला हूँ और ज्वेलरी लोग खरीद लेंगे. अभी एक बेसिक चीज है भाई, लोगों के पास में 50 ऑप्शन है, तुम्हारी ज्वेलरी क्यों खरीदेंगे. फिर वो क्या बोलते हैं, बट आई विल हैव वेरी यूनिक डिजाइन. अभी उसको समझना पड़ता है कि एवरी डिजाइनर थिंक्स दैट योर डिजाइन इज द यूनिक डिजाइन. ठीक है ना. फिर ज्वेलरी तो बिक गई, पैसा नहीं आया. सो नाउ दीज आर ऑल द प्रैक्टिकल थिंग्स वन दे लर्न. आफ्टर दैट इफ ही स्टार्ट्स ना, उसको मालूम है कि इस तरह से होती है, तो ही कैन बी सक्सेसफुल बेटर. आपने अलग स्टार्ट किया, आपको शायद 10 साल लगे, वो स्टार्ट करेगा, वो 2 साल में कर पाएगा. यू हैव रीच अप टू 100 crore, he has to reach 1000 crore. So grooming them is what is important. Thank you, sir. Thank you so much, everyone. And now I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed speaker, Dr. Parimal Merchant. It was indeed a very insightful session. I'm sure each one of us have something to take home today. And now may I please request Tailwind's founding members, Mr. Vikas Goyal, Mr. Vimal Singhania, and Mr. Shashi Bhargava to come on stage to present a token of our gratitude. Can we have a round of applause, please? Okay. Great. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. May I now request presidents of Rotary clubs to present the memento to Parimal sir. Rotarian Gaurav Khetan, President of Mumbai Western Elite. Rotarian Arun Bagaria, President of Mumbai North End. Rotarian Vipul Patel, President of Mumbai North West Malad. And Rotarian Sumit Agrawal, President of Rising Star. Thank you. And now I would like to thank all of you present here for making the time to be with us today and helping us make this event a great success. Kindly proceed for lunch and please collect a small autograph book by Dr. Geeta Piramal from the registration desk as a small memento from Tailwind team. Thank you.